اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ میرے پیارے پیارے بچوں کو پیار بھرا سلام۔ اللہ تم سب کو خوش رکھے، شاد و آباد رکھے، تمہارے سروں پر تمہارے شوہروں کے پیار بھرے شفقت بھرے سائے قائم رکھے۔ اللہ نہ کرے کسی کے گھر میں کچھ غلط فہمی ہو گئی، کچھ آپس میں کچھ ہو گیا تو اللہ تمام کے آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق دے، اللہ ہدایت دے۔ اللہ ہدایت اور توفیق جب دیتا ہے تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔ بچوں یہ کیا ہے، شوہر بھی ایک ساتھ میں مل کر رہتے تو بہت اچھا لگتا ہے۔ بس میری یہی دعا ہے کہ اللہ تمام شوہر بیوی میں آپس میں پیار محبت دے، آپس میں مل جل کر رہنے کی توفیق دے اور دونوں کو ایک ہم خیال کریں انشاءاللہ۔ یہ جو دین کی کلاسز شروع ہوئی ہے انشاءاللہ یہ ہمارے ساتھ بھی ہمارے بعد بھی قائم رہے اور یہ سلسلہ کبھی اللہ نہ کرے کبھی ختم ہو اور یہ سلسلہ ایسا ہی چلتا رہے۔ ہمارے بعد ہمارے بچوں کو بھی اللہ تمام کو اس تبلیغ کلاس کو چلانے کی توفیق دے۔ اللہ تم سب کو بھی روحانی اور جسمانی طاقت دے جو اس کام کا بیڑا اٹھائے انشاءاللہ۔ اور رمضان مبارک آیا ہے تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، اس کا صحیح سے مصرف کریں گے، عبادت جو پہلے کرتے تھے اس سے بھی زیادہ کریں گے اور تمام اللہ کے بتائے ہوئے احکامات پر چلنے کی اللہ تمام کو توفیق دے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ پتہ ہے بچوں، اللہ کو منانا بہت آسان ہے، ایک سجدہ چند آنسوں اور بس دو جہانوں کا بادشاہ راضی ہو جاتا ہے الحمدللہ۔ جس کی الفاظ کی تاثیر ہمارے اندر اللہ کی سچی تڑپ و محبت پیدا کر دے تو جان لو کہ وہی ہمارے رب کے طرف بھیجا گیا سفیر ہے اور ہمارا قیمتی سرمایہ۔ مالک کو دریافت کرنے کا رشتہ یہیں سے شروع ہوتا ہے الحمدللہ۔ اور جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا جاتا ہے تو برکتیں اترتی ہیں۔ جیسے ہی ہم اللہ تبارک تعالیٰ کے راستے پر چلنا شروع کرتے ہیں، اگلے راستے ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، راستہ ہموار ہو جاتا ہے۔ اس رمضان مبارک میں عہد کریں گے، قرآن اور نماز سے تعلق بنائیں گے، جو عبادت کرتے تھے انشاءاللہ اس سے بھی زیادہ عبادت کریں گے، کیونکہ بچوں کیا ہے یہ نیکی کا بدلہ 70 گنا زیادہ ملتا ہے تو انشاءاللہ ہم اس کو ضائع ہونے نہیں دیں گے، اس کا صحیح مصرف کریں گے۔ اللہ ہم تمام کو توفیق دے اور ہم کو اس راستے پر چلنے کی، صراط مستقیم پر چلنے کی اللہ تمام کو توفیق دے۔ اللہ کو وہ ہمارے عمل نظر آنا چاہیے، عمل سے زندگی بنتی ہے، جنت بھی جہنم بھی۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے، رمضان کی تیاری شروع کریں گے انشاءاللہ۔ رمضان آنے سے پہلے اپنے دل کو روشن کریں۔ رمضان کی عبادت کا مزہ آپ اندھیروں سے بھرے دل کے ساتھ نہیں لے سکیں گے۔ بے شک دل کے اندھیرے استغفار سے ختم ہوتے، ابھی سے استغفار کی کثرت کریں گے۔ استغفار ہمارے اندر کے اندھیروں کو مٹا دے گا انشاءاللہ۔ ابھی بھی دیر نہیں ہوئی، بس ایک قدم اٹھائیں، باقی کی منزل اللہ تعالیٰ آسان فرمائیں گے الحمدللہ۔ مرنے سے پہلے مرنے کی اور موت سے پہلے موت کی تیاری کریں گے انشاءاللہ۔ موت کا ایک دن معین ہے، کب موت آئے گی یہ کسی کو بشر نہیں، آگاہ اپنی موت سے کوئی بشر نہیں۔ سامان 100 برس کا ہے، پل کی خبر نہیں۔ رمضان کے مہینے کو ہمارے سلامتی کا ذریعہ بنا اور ہمیں گناہوں سے محفوظ بنا، ہمیں صبر اور اجر کی امید کے ساتھ اس کے روزے اور راتوں کی عبادت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری جو عبادت کرتے تھے اس سے بھی زیادہ سے زیادہ عبادت کرنے کی ہم کو توفیق دے، ہم کو ہدایت دے۔ یا اللہ تمام کو سلامتی کے ساتھ رکھنا، صحت تندرستی دے، حیات دے اور اس مہینے کے پورے روزے رہنے کی توفیق دے اور اس کا پورا اجر عطا فرما انشاءاللہ۔ یا رب کائنات، ہم تیرے پاک کلام سے دن کی ابتدا کرتے ہیں۔ یا رب ہمارے دین اور دنیا بہتر فرما، اپنے لامحدود خزانوں سے روزے رزق حلال عطا فرما۔ مجھے اور مجھ سے جڑے تمام احباب اور تمام امت مسلمہ کو آسانیاں عطا فرما، آمین۔ اللہ آپ تمام کی حفاظت کرے اور تمام جائز حاجات پوری کرے، آمین۔ دعائیں رد نہیں کرتا اللہ تعالیٰ، دعائیں رد نہیں کرتا۔ تم یقین سے مانگ کر تو دیکھو، صبر کریں، اگر آزمانے والا اللہ ہے تو آزمائش سے نکالنے والا بھی ہمارا اللہ ہی ہے انشاءاللہ۔
یا اللہ ہمیں جو دیا اس پر شکر اور جو نہیں دیا اس پر صبر کرنے والا بنا دے۔ یا اللہ ہمیں نماز اور قرآن ہماری زندگی کا معمول بنا دے۔ قرآن کی محبت، قرآن کی فضیلت، قرآن کی روشنی، قرآن کا سکون، قرآن سے شفا، قرآن کی برکت سے عطا فرما، آمین۔ آنسوؤں کی کوئی زبان نہیں ہوتی، بس فریاد ہوتی ہے، اور اس فریاد کو سننے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں۔ وہی ہے جو مشکلوں سے نکالتا ہے، بے شک وہی ہے جو اندھیروں کو روشنی میں تبدیل کرتا ہے، الحمدللہ۔ جمعہ کے دن عصر اور مغرب کے درمیان دعا کی قبولیت کی گھڑی کا وقت ہوتا ہے، لہٰذا اپنے قیمتی وقت کو فالتو چیزوں میں ضائع نہ کرے، کثرت سے گڑ گڑا کر دعا کیجیے۔ اللہ فرماتا ہے مجھ سے مانگو میں دینے والا۔ اللہ کہتا ہے تو میری طرف ایک قدم بڑھو تو میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھوں گا۔ تو انشاءاللہ ہم کیا کریں گے، اپنے دعاؤں میں پوری امت کو بھی شامل کریں گے، اور اللہ ہماری دعاؤں کو قبول کرے، آمین۔ ہماری زندگی جب اللہ کے بتائے ہوئے صراط مستقیم پر چڑھ پڑے اور صحیح راستہ مل گیا تو اللہ پاک سمجھو کہ اللہ پاک ہم سے خوش ہو گیا ہے۔ اللہ پاک تیری پناہ مانگتے ہیں تمام نافرمانیوں سے، الحمدللہ انشاءاللہ۔ اور بس خدا ہی جانتا ہے کہ کون سا شخص کس کرب سے، کس تکلیف سے، کس درد سے گزر رہا ہے۔ رات کے اندھیرے میں اس کے پاس آنسو بہانے آتا ہے، وہ خدا ہی جانتا ہے کہ کس کا دل بوجھ تلے دبا ہوا ہے، وہ خدا ہی جانتا ہے کہ کون صبر اور برداشت کی تصویر بنے اس کے در پر صبر کا پھل مانگنے آیا ہے، وہ خدا ہی جانتا ہے کہ وہ کون سا شخص مسکان ہے جو مسکان کے پیچھے کتنی انکہی چھپا کر رو رہا ہے۔ تو خدا جب یہ سب جانتا ہے تو یہ بھی جانتا ہے کہ کس کو انعام کب دینا ہے، صبر کا پھل کب لگانا ہے، الحمدللہ۔ بچوں، ہم مالک کے مشکل کشا سے جو دیا ہے اس پر شکر اور جو نہیں دیا ہے اس پر صبر کریں گے، الحمدللہ۔ اللہ ہی دعا اور التجا کا اجر دے گا، اللہ سب سن رہا ہے، بے شک یہی کافی ہے۔ جب آپ کا باطن پاک و صاف ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کو وہاں سے نور عطا کرتا ہے جہاں سے آپ کو علم بھی نہیں ہوتا۔ اللہ پاک تمام کو نیک اور صالح اولاد سے نوازے اور انہیں ہمارے رقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ نفس بہت ظالم ہے، کبھی گناہوں میں مبتلا کر کے رب سے دور کر دیتا ہے تو کبھی نیکیوں اور عبادتوں کو کے غرور میں مبتلا کر کے اعمال کو بھسم کر دیتا ہے۔ یا اللہ ہمیں نفس کے شر سے محفوظ رکھنا، آمین۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی طرف کبھی ضائع نہیں کرتا، اپنی مانگی ہوئی دعاؤں پر یقین رکھے، وہ رحیم ہے، وہ رحمان ہے، وہ رد نہیں کرتا، الحمدللہ۔ اللہ رب العزت سننے سمجھنے سے زیادہ ہم نے تمام کو عمل کرنے کی توفیق دے۔ اللہ ہم تمام کو حسد، جلن اور بغض سے محفوظ رکھے، کاروبار میں ترقی دے، حلال روزی نصیب کرے، قرض کے بوجھ سے ہلکا کر دے، دین دنیا کی خوشیاں نصیب کرے، جو مانگا وہ بھی عطا کر، جو مانگنے سے رہ گئے وہ بھی عطا کر، آمین۔ یا اللہ ہم تیری فرما برداری، تابع داری، صبر و تقوی اور شکر گزاری اور ثابت قدم رکھنے کی ہم تمام کو توفیق دے، ہمیں دین کے احکامات پر چلنے کی توفیق دے، ہمیں بڑوں کی تابع داری اور چھوٹوں سے محبت اور شفقت کے ساتھ پیش آنے کی توفیق دے، ہمیں والدین کی قدر کرنے کی توفیق دے۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جو ماں باپ کی قدر کرتے ہیں، ان کے ساتھ صلح رحمی کے ساتھ پیش آتے ہیں۔ اے پاک پروردگار، ہم سے یہ نیک عمل قبول فرما دے، بے شک صرف تو ہی ہے جو ہر ایک کی سننے والا، ہر ایک کو چاہنے والا ہے۔ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، ہماری زندگی میں نماز اور قرآن کو شامل کر دے، بے شک قرآن مجید دل کا سکون ہے اور ہماری ہر الجھن اور پریشانیوں کا حل ہے، بے شک زندگی کی ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ یا اللہ ہمارے نمازوں کو اور قرآن کو پڑھنے کی صحیح فرما، اور ہم اللہ پر یقین کرنا اور توکل کرنے کی ہمیں توفیق دے، غیر اللہ کا سہارا کبھی مت دے رہا، چاہے جان ہی کیوں نہ چلی جائے، الحمدللہ۔ آپ کی لگن، آپ کا جذبہ اور آپ کی تڑپی آپ کو بلندیوں تک لے جاتی ہے۔ اللہ پاک ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق عطا کر اور ہمارا نام ہمارے دائیں ہاتھ میں دینا نصیب فرما، ہماری چھوٹی بڑی ساری خطاؤں کو معاف کر دے، کیونکہ پتہ نہیں یہ دن آپ کی زندگی میں واپس بھی آئے گا یا نہیں۔ موت کا ایک دن مریے نہیں تو موت سے پہلے کیا کریں گے بچوں، ہم اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، اور جانے انجانے میں جو بھی گناہ ہوئے اللہ تمام کو اللہ سے معافی مانگیں گے کہ اللہ ہمارے گناہوں کو معاف کر، ہمیں اچھی توفیق دے، ہمیں نیک اور صالح بندوں میں ہمارا شمار فرما، ہمیں دین کا داعی بنا دے، اور جو بھی
यहाँ बच्चे बैठे हैं, अल्लाह इन तमाम को, जो नई भी आई हैं, अल्लाह इन तमाम को सेहत तंदुरुस्ती के साथ हयात दे। अल्लाह ना करे किसी के घर में कोई तकलीफ है, परेशानी हो तो तमाम की परेशानियों को, तकलीफों को दूर फरमा। और तमाम को जो रमजान आने वाला है इंशाल्लाह 2 दिन में शुरू होना है, इसका पूरा पूरा अजर अता फरमा और हम तमाम को सिरात मुस्तकीम पर चलने की तौफीक दे। और इस और यहाँ आज से इंशाल्लाह एक पूरा पारे का जो मानी के साथ पढ़ाएंगे, हम तमाम को गौर से सुनने की, समझने की, अल्लाह और अमल करने की तौफीक दे। और दूसरों को भी इंशाल्लाह बताएंगे और पहले खुद गौर से सुनेंगे और समझेंगे। जब माने से कुरान पढ़ना शुरू करते हैं बच्चों, तो हमको सब समझ में आ गया है कि अल्लाह ने इस मौजिज़े में, इस कुरान में, इस अनमोल तोहफे में अल्लाह ने क्या रखा है। तो इंशाल्लाह आज से इंशाल्लाह हम बराबर गौर से पहले भी सुन चुके हैं तो और भी सुनेंगे और हमारी समाज बढ़ेगी इंशाल्लाह। अल्लाह सुनने समझने से ज्यादा अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन या रब्बुल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह हाफिज। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. سورة بقرہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الف لام میم. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. الحمدللہ. نحمدو نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ. اللہ تبارک تعالیٰ کا بہت بہت احسان اور کرم ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے ہم کو یہاں پر قرآن کی نسبت لا کے جمع کیا. ہم اللہ کا جتنا بھی شکر کرے اتنا کم ہے الحمدللہ. تو بہنوں جب ہم کو یہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ نے لا کر بٹھا دیے، اللہ کا بہت 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 احسان اور کرم ہے نا. اب یہاں پہ جب ہم آ کے بیٹھ گئے بہنوں تو انشاءاللہ ہم اس بات کی فکرے کریں گے کہ ہم غور اور فکر سے سنیں گے، سمجھیں گے، عمل کی نیت سے بیٹھیں گے. انشاءاللہ بہت ساری بہنیں اپنا نوٹ اور پین لے کے بیٹھے ہوں گے. بہت ساری بہنوں کو چاہیے تھا PDF، میں انشاءاللہ شیئر کر دوں گی گروپ میں بھی. اوکے الحمدللہ ہم کوشش کریں گے، فکرے کریں گے بہنوں. یہ ہمارے اوپر بھی بہت بڑی ذمہ داری ہے. جو پہلا پارہ ہے بہنوں، اس میں سورہ فاتحہ آتا ہے اور اس میں سورہ البقرہ کی بہت ساری آیتیں، یعنی تقریباً آیت جو ہے وہ 141 آیتیں ہوتی ہیں. تو یہ سب 1 گھنٹے میں مکمل کرنا یا سمجھانا یا بتانا اٹس نیکسٹ ٹو امپاسبل، جیسے کہ آپ سب جانتے ہو. مگر ہم کوشش کریں گے، فکرے کریں گے کہ جتنا ہو سکے آپ کو اس کے بارے میں بتائے. جو اللہ تبارک تعالیٰ چاہے گا
جو हमसे बुलवाएगा, जो आपको सुनाएगा, है ना, सब किसके हाथ में? अल्लाह के हाथ में। हम बहुत कुछ लिख के रखते हैं, पर वही हम बोलते हैं जो अल्लाह चाहता है। तो हम अल्लाह से ही दुआ करेंगे कि या अल्लाह ताला, जो हमारा ये बैठना है, सुनना है, या अल्लाह पहले तो इसको कबूल कर ले हमारे हक में, इसको आसान कर, इसको या अल्लाह इस्तकामत दे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और या अल्लाह, या अल्लाह, या अल्लाह, बहुत सारी बहनों को इससे जोड़। या अल्लाह, जो तू चाहता है वो हमसे बुलवा, जो तू चाहता है वो सुना। या अल्लाह, सब कुछ तेरे हाथ में। इस वक्त फरिश्तों ने हमको घेर लिया है बहनों, तो इंशाल्लाह गौर और फिक्र से बैठेंगे। अल्लाह तबारक ताला हमारी नीयतों को भी जानता है, तो हम किस नीयत से बैठेंगे? अल्लाह की रजा के लिए। अल्लाह के रजा के लिए, अल्लाह को राजी करने के लिए हम सब यहाँ पे जमा हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, हम हमारे आखिरत के फिक्र के लिए जमा हुए हैं, उसकी तैयारी के लिए जमा हुए हैं ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो या अल्लाह ताला हमारे इस बैठने को, सुनने को कबूल फरमा। आमीन, आमीन, आमीन। ओके, शुरुआत बहनों में किसी बात से शुरू करूंगी, किसी वाक्य से शुरू करूंगी, इंशाल्लाह, इंशाल्लाह। यस, इखलास नियत। तो वो बात क्या है कि एक सहाबा, आप सब जानते होंगे, हजरत अनस रज़ी ताला अन्हु, अल्हम्दुलिल्लाह, इनके बारे में आता है बहनों कि सहाबाओं में से, सहाबाओं में से सबसे लास्ट जिनका इंतकाल हुआ था, जो बहुत ज्यादा उम्र तक थे, यानी 100+ तक थे, वो कौन थे? हजरत अनस रज़ी ताला अन्हु, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो क्यों थे? उनका रीजन क्या था बहनों? कि जब वो 10 साल के थे, अल्हम्दुलिल्लाह, जब वो 10 साल के थे, उनकी अम्मी ने, 10-11 साल का बच्चा, मुझे पता है मेरा बच्चा वही उम्र का है, तो मुझे पता है उसको इतना जहन भी नहीं है, उतना दिमाग भी नहीं है, कितनी बार हर चीज बोलनी पड़ती है। 10 साल 11 साल का बच्चा कैसा होता है ना बहनों। तो उनकी वालिदा ने उस सहाबा को नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास लाके छोड़ दिया और कहा कि मेरे बच्चे को आप अपने पास रखिए, अपने खिदमत के लिए उससे काम लीजिए। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो आपके साथ रहेगा, तो आप उसकी तरबियत भी कर दोगे। अल्हम्दुलिल्लाह। तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ही रहते थे, उनकी बहुत खिदमत की। नबी ने उनके हक में बहुत दुआएं दी, बहुत दुआएं। सोचो, रात दिन उनके साथ रह रहे, तो कितनी दुआएं मिली होगी, अल्हम्दुलिल्लाह। सोचो बहनों, सोचो, जस्ट इमेजिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहना, 24 घंटे साथ रहना, उन्हीं के साथ रहना, उनकी खिदमत करना, कितनी बड़ी खुशकिस्मती की बात है ना, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहुत सारी दुआएं भी उनको मिली, माशाल्लाह। तो उनके बारे में आता है बहनों कि ही वॉज वन ऑफ द लास्ट सहाबा, जिनका जो दुनिया से गए थे, अल्हम्दुलिल्लाह। तो वो एक बार बताते हैं, वो जब इतने बुजुर्ग हो गए थे, तो वो बताते हैं बहनों कि हमारे हमारे दौर में जब हमसे कुछ गुनाह होते थे, तो ऐसा लगता था वो गुनाह हम हमको हलाक कर देंगे। और हम इतने डर जाते थे, इतने डर जाते थे, इतने खौफजदा हो जाते थे। हाँ, गुनाह तो वो जमाने में भी था, गुनाह ये जमाने में भी है। तो वो क्या बताते हैं बहनों कि हमारे दौर में जब हमसे कोई गुनाह होता था, तो हम इतने डरते थे, इतने जदा हो जाते थे। वो गुनाह जो ऐसा लगता था कि ये गुनाह हमको क्या करेगा? हलाक कर देगा। पर आज यही गुनाह जब तुम लोग करते हो, तो ऐसा लगता है कि एक मक्खी बैठी थी और उसको उड़ा दिए। कैसा हो गया है सेम गुनाह आज के जमाने में, कि एक मक्खी बैठी थी और हमने उसको उड़ा दिया। यानी पहले के सहाबा इतने डरते थे कि कभी ये गुनाह से हम हलाक ना हो जाए, वो इतना डर खौफ था बहनों इनको नबी के दौर में। वही गुनाह, ओके, एग्जाम्पल बताती हूँ बहनों, म्यूजिक वो जमाने में भी था, मौसीकी ये जमाने में भी है, नाचना गाना वो जमाने में भी था, नाचना गाना ये जमाने में भी है। मगर वो जमाने में सहाबा इतने डरते थे गुनाहों से कि उनको लगता था ये गुनाह मुझे हलाक कर देगा। यानी वो गुनाह को ऐसा लगता था कि मेरे ऊपर जैसे पहाड़ है, हाँ,
اور وہ اتنا उससे जो है वो बोझ उठा नहीं पाते थे, वो तौबा तिल्ला करते थे। आज वही गुनाह आज भी है बहनों, पर हमको कैसा लगता है ना, जैसे कि एक मक्खी बैठी थी और उड़ा दिए। इट्स ओके, इट्स ओके, म्यूजिक चल रही है, इट्स ओके, डांस हो रहा है, इट्स ओके, क्या हो गया, बाद में तौबा इस्तगफार कर लेंगे, बाद में कलमा पढ़ लेंगे, बाद में उम्रा कर लेंगे, क्या हो गया, एक ही टाइम तो कर रहे हैं ना, एक ही टाइम तो हम एंजॉय कर रहे हैं ना, कौन सा बार बार कर रहे हैं ना। कैसा हमको शैतान बहकाता है ना, कैसी कैसी बातें हमारी जहन में आ जाती है ना, कि इट इज ओके, इतना भी नहीं होना चाहिए यार, इट्स ओके, इतना भी सीरियस नहीं होना चाहिए। हाँ, इट्स ओके, इट्स ओके, ये भी कर लो, वो भी कर लो, चलेगा, बाद में तौबा कर लो ना यार, इट्स नॉट अ बिग डील। हाँ, आज वही गुनाह जब होता है तो एक इंसान भी हार्डली खड़ा होता है, राइट, हार्डली वहां से हटता है। तो सोच के देखो बहनों, कितने हम दूर हो चुके हैं ना, कितना कितना फासला हो चुका है, और फिर हम बोलते हैं कि या अल्लाह काश मैं सहाबा होती, काश मैं वो जमाने में पैदा होती। तो याद रखना बहनों, काश हमारे अंदर वो ईमान तो उस वक्त भी था, वो ईमान आज भी है। क्या हमारे अंदर इतना ईमान आया है बहनों कि हम जब गुनाह को देखते हैं तो उससे इतना बचते हैं, या तो हम जो है उसको क्या करते हैं, अपने हाथों से रोकते हैं, या तो जुबान से रोकते हैं, या तो उसको दिल में बुरा जानते हैं। ईमान के 3 दर्जे हैं ना बहनों, ईमान के 3 दर्जे। जब कोई गुनाह हो रहा है, या गुनाह की महफिल है, या गुनाह हम करने वाले जो भी है, तो हम उस वक्त टटोले हमारे अंदर, क्या मैं उस गुनाह को अपने हाथों से रोकती हूँ, अपने जुबान से रोकती हूँ, या तो फिर मैं क्या करती हूँ, अपने दिल में बुरा जानती हूँ। ये सबसे लास्ट दर्जे का ईमान है बहनों, अपने दिल में उसको बुरा जानना। और अगर ये भी नहीं हो रहा है, म्यूजिक डांस देख के अगर ये भी नहीं हो रहा है ना बहनों, तो याद रखना ईमान का कोई दर्जा ही हमारे अंदर नहीं, इट्स इट्स नथिंग, इट्स नो वेयर। जैसे लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने कभी गलत काम नहीं किया बहन, उनके दौर में मर्द मर्द से वो काम कर रहा था। ओके, आपको सबको पता ही रहेगा, मगर लूत अलैहिस्सलाम की बीवी ने उस चीज को कभी नहीं किया। अल्हम्दुलिल्लाह, पाक औरत थी वो, मगर उन्होंने क्या किया, उनके जमाने में जो गुनाह हो रहा था, उस गुनाह को गुनाह ही नहीं समझा, उसका साथ दिया। और हम सब जानते ना कि जब अजाब आया तो उन पर भी आया, हालांकि वो नबी की बीवी थी बहनों, कोई नबी की बीवी नहीं बन सकता। वो बहुत खुशकिस्मत बहनें औरतें होती है जो बनती है बहनों, मगर जब गुनाह की बात आई तो उन्होंने इस गुनाह को गुनाह नहीं समझा, हालांकि शी डिड नॉट डू एनीथिंग रॉन्ग, शी डिड नॉट डू दैट एक्ट, मगर ओनली थिंग इज दैट उन्होंने उस गुनाह को गुनाह नहीं समझा, और वो भी क्या हो गई, अल्लाह के अजाब में हलाक और बर्बाद हो गई। बोलने का मकसद यही है बहनों, आज हम कहाँ खड़ते हैं, है ना, वेयर डू वी स्टैंड। तो हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि जब अल्लाह ने हमको ऐसी महफिलों में लाके जोड़ा है, अल्हम्दुलिल्लाह, तो हम भी क्या करेंगे, अपने ईमान को मजबूत करेंगे। हम यहाँ क्यों आ रहे हैं बहनों, अपने आप से ये सवाल पूछेंगे, हम यहाँ क्यों आ रहे हैं, बहनें क्यों जमा हो रही है। क्योंकि बहनों, एक होती, एक हमारे साथ है जिस्म, और एक हमारे साथ है रूह, है ना। बदन को अगर ताकत की जरूरत है, बदन को भूख लगती है, तो बदन के लिए हम फौरन खाना खाते हैं, है ना। हमारा तो दिन में 3 से 4 बार, कभी 5 बार भी हम लोग उसको खिलाते ही रहते हैं, खिलाते ही रहते हैं, चाहो नहीं चाहो, हाँ, भूख हो नहीं हो, हम उसको बराबर फीड करते रहते हैं, है ना, हमारे जिस्म को बराबर खाना देते रहते हैं, उसका बराबर ख्याल रखते हैं, है ना। मगर रूह, हमारी रूह की गिजा, वो कहाँ से उतर रही है बहनों, आसमानों से उतर रही है, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। और वो क्या है, ये कुरान, माशाल्लाह माशाल्लाह, और ये कुरान मेरे रूह की गिजा है बहन, क्या है, मेरे रूह की गिजा, और उस रूह की गिजा के लिए मैं आज यहाँ पर जो है वो आई हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके, तो यहाँ तक जो है जितनी भी बातें बताई गई है, सब बहनों को सब बातें क्लियर है बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह। 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 अल्हम्दुलिल्लाह।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों को जो न्यू बहने हैं सबको समझ में आ रहा है ना? लैंग्वेज बैरियर तो नहीं हो रहा है ना? कुछ बातें समझ में नहीं आ रही है या मेरा अल्हम्दुलिल्लाह सब समझ ऐसा में कुछ आ अल्हम्दुलिल्लाह रहा है। बाजी। समझ ऐसा में आ कुछ रहा है। भी उनकी नहीं है कितने ना? का उम्र तक थे वो, उनकी यहाँ पर सब समझ अनस में आ रहा है। अनस जी रज़ियल्लाहु अन्हु का एज जी क्या कब तक बोले थे सिस? कहीं? अनस हजरत रज़ियल्लाहु अन्हु हाँ ईयर हम कब तक थे बोले आप? 10-11 साल के थे जब उनकी वालिदा ने उनके पास नहीं नहीं छोड़ वो दिया। पता चला, जो हयात हाँ से कब था? हयात उनका 100+ तक थे वो ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। जज़ाकल्लाह। बहुत हाँ जी, बहुत दुआएं मिली थी उनको, नबी की दुआ सोच के देखो बहनों, है ना? अल्हम्दुलिल्लाह नबी की खिदमत करने का उनको मौका मिला, नबी की दुआ मिली अल्हम्दुलिल्लाह। तो अब तक जो है सब बातें क्लियर है। 3:20 हो रहा है बहनों। तो मैं यहाँ से जो है अपना ये पहला जुज चालू करूंगी अल्लाह के फजलो करम से, अल्लाह के हुक्म से। और मैं इंशाल्लाह ये कोशिश और फिक्र करूंगी कि मैं एक घंटे में इसको मुकम्मल करूं। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। ताकि आप बहनें जो अपना इतना वक्त लगा रहे हैं उस वो इतना कीमती वक्त है, तो आपका वक्त भी जाया ना हो। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। तो सूरह फातिहा पर आ जाते हैं बहनों। जैसे कि आप लोग सब जानते हैं कि पहला जो कुरान हमारा शुरू ही होता है वो सूरह अल फातिहा से होता है अल्हम्दुलिल्लाह। तो सूरह अल फातिहा जिसका रूट वर्ड है फतहा यानी द ओपनिंग अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहला तो ये है कि कुरान मजीद अल्हम्दुलिल्लाह इसी पारे से यानी इसी सूरे से शुरू हो रहा है हमारा कुरान, इसी सूरे से शुरू हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और माशाल्लाह माशाल्लाह बहनों, ये पहला सूरा है, ये पहला सूरा है जो पूरा मुकम्मल तौर पे उतरा था। माशाल्लाह। कुछ लोग कहते हैं मक्की है मदनी है, कुछ लोग कहते हैं ये दोनों है, यानी ये मक्के में भी उतरा, ये मदीने में भी उतरा। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये जो सूरा है सूरह अल फातिहा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सूरा है, वन ऑफ द इम्पोर्टेंट सूरा है बहनों। इसके बारे में, ये सूरे के बारे में अल्हम्दुलिल्लाह ये वाहिद सूरा है जिसके बारे में कुरान मजीद में इसका जिक्र आता है बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह। और अब मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगी। ओके मैं पहले आप लोगों को ये बात बता देती हूँ, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ। और रीजन यही है बहनों, रीजन क्या है कि आप लोग जो है वो क्या करोगे, इंशाल्लाह इंशाल्लाह हमारी क्लासेस ज्वाइन करोगे। हाँ, आप लोग जो है हमारी क्लासेस ज्वाइन करोगे, जहाँ पे हम आपको इस सूरे अल फातिहा के बारे में डिटेल में सब बताएंगे। ओके अल्हम्दुलिल्लाह पूरा डिटेल में हम आपको बताएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। इसके बारे में, इसके बेनिफिट्स बताएंगे, इसके फायदे बताएंगे। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह इंट्रोडक्शन बताएंगे। ये जो सूरा है बहनों, इसके बहुत सारे नाम आते हैं। ओके अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे नाम आते हैं। उस सब नामों के बारे में, कौन से नाम है उसकी डिटेलिंग आपको सब बताया जाएगा। इसके बहुत सारे फायदे भी है बहनों, हदीसों में इसके बारे में आता है अल्हम्दुलिल्लाह। सूरह फातिहा जो है बहनों, इसकी बहुत ज्यादा फजीलतें हैं, फायदे हैं। ये कैसा है पता है बहनों, ये जो हमारी क्लास है ना, हम लोग आपको सिर्फ जो है ना बता रहे हैं, आपको जो है ना एक्साइटमेंट डालने के लिए, आपके अंदर वो मोटिवेशन डालने के लिए। अभी आपको क्या करना पड़ेगा, रमजान के बाद, ओके रमजान के बाद जो न्यू बहनें हैं जिनको बिल्कुल भी नहीं पता है इसके बेनिफिट, इसके बारे में, देखो जो बहनों को पता है अल्हम्दुलिल्लाह, जो बहनों को कुछ भी नहीं पता सूरह फातिहा के बारे में एंड दे वांट टू नो ऑल द डिटेलिंग, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हमारी क्लासेस ज्वाइन करना पड़ेगा इंशाल्लाह इंशाल्लाह, जो रमजान के बाद न्यू सिरे से शुरू होगा। ओके अल्हम्दुलिल्लाह। और वहां पे क्या होगा ना, आपको सब बातें डिटेल में बताई जाएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और क्योंकि मेरे पास यहाँ पे वक्त की कमी है, तो मैं यहाँ पे डिटेल जो है वो नहीं बताऊं। ओके अल्हम्दुलिल्लाह, ताकि आप लोग के अंदर भी जो है ना वो आ जाए कि हाँ मुझे सुनना है ना, इसके क्या क्या नाम है, इस सूरे की क्या क्या फजीलतें हैं। बहनों ये सूरे के देखो तीनों किताबें, हाँ 4 किताबें हैं एक्चुअली, जो अल्लाह तबारक ताला ने उतारे हैं और हमको नाम बताए, इसके अलावा भी बहुत सारे होंगे, है ना, वल्लाहु आलम। मगर हमको जो 4 किताबों के नाम बताए गए हैं, आप लोग सब जानते ही होंगे, फिर भी मैं यहाँ पे दोहरा लेती हूँ। ओके, जबूर जो है वो दाऊद अलैहिस्सलाम को दी गई थी,
तौरात जो है वो मूसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी, और इंजील जो है वो ईसा अलैहिस्सलाम को दी गई थी। और कुरान पाक जो है वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दी गई थी, हाँ, उतारी गई थी। अब इसके बारे में आता है बहनों कि इंजील, तौरात और जबूर, ये सब में जो बातें थी वो तमाम बातें कुरान में है, अल्हम्दुलिल्लाह। और कुरान में जितनी भी बातें हैं उसका निचोड़, हाँ, उसका अगर मैं बोलूँ ना, उसकी अगर उसका मैं बोलूंगी कि समरी किसमें है, सूरह अल फातिहा में है बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह। और सूरह अल फातिहा का पूरा समरी, पूरा निचोड़ किसमें है, तो वो कौन सी आयत है, इय्याका नाबुदु व इय्याका नस्तईन में है, अल्हम्दुलिल्लाह, 4th आयत है वो। तो माशाल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह का कलाम जो है वो कैसा शुरू होता है, वो तारीफों से शुरू होता है, अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह तबारक ताला का कितना बड़ा एहसान व करम है कि अल्लाह तबारक ताला ने हमको सूरह अल फातिहा से मुनव्वर किया है ना, ये सूरा हमको अता किया। ये जो सूरा है बहनों, ये बहुत 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 फजीलत रखता है। जैसे कि अगर किसी को बीमारी हो गई हो, किसी को जादू हो गया हो, हसद हो गया हो, नजर हो गया हो, कुछ भी बहनों, कुछ भी, यानी कि सोचो ना, पॉइजन, जहर भी किसी ने पिला दिया हो, यानी इतने सारे बीमारी, कोई जुनून हो गया, कोई पागल हो गया, हाँ, ये सब का जो इलाज है बहनों वो किस में है, सूरह अल फातिहा में है। सोच के देखो कितनी ज्यादा इसमें फजीलतें हैं। ये सब डिटेलिंग आप कहाँ जानोगे, कब जानोगे, जब आप अपने हमारी क्लासेस ज्वाइन करेंगे तो आपको पूरा डिटेलिंग बताया जाएगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। और इसके बारे में क्या आता है बहनों, बहुत ज्यादा फजीलतें, बहुत ज्यादा फायदे, बहुत ज्यादा सवाब, बहुत ही खास सूरा है। मुफस्सरीन तो कहते हैं इसके 36 नाम है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्हम्दुलिल्लाह बहनों, ये वाहिद सूरा है जिसकी तारीफ खुद कुरान में भी है बहनों, और इसकी फजीलत बताई गई है, इसकी अहमियत बताई गई, इसकी इम्पोर्टेंस बताई गई, हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो कुछ भी आप मिस मत करना, ओके। और सूरा जो है, इसमें 7 आयतें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह का नाम बिस्मिल्लाह से शुरू होता है बहनों। तो देखो बहनों, अम, यहाँ देखो, अब जो मैंने सूरा बता रही हूँ तो आप देखिए, यहाँ पे जो है सूरा किससे शुरू हो रहा है, बिस्मिल्लाह से शुरू हो रहा है, अल्लाह के नाम से शुरू हो रहा है, यानी कुरान मजीद, हाँ, शुरू हो रहा है किससे, बिस्मिल्लाह, यानी अल्लाह के नाम से। और अल्लाह का नाम ही जो क्या है बहनों, बहुत ही बाबरकत वाला नाम है। सिर्फ अल्लाह का नाम, हाँ, जब मैं लेती हूँ ना बहनों, तो तमाम बरकतें उसमें आ जाती है। और अल्लाह के जितने भी नाम है ना बहनों, सिफती नाम, वो सब इसमें छुपे हुए हैं। जब मैं बिस्मिल्लाह कहती हूँ तो गोया कि मैं वो पूरे 99 सिफत है ना, मैं वो सबको, सबके साथ इसको लेके चल रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। तो बहनों, हमेशा हम कोई भी काम करें, सिर्फ ये कुरान मजीद की बात नहीं है बहनों, हाँ, कुछ भी आप काम कर रहे हो, दुनिया के कोई भी काम कर रहे हैं, कुकिंग करने जाते हैं हम, कुछ भी लिखते हैं, पढ़ते हैं, कुछ भी काम कर रहे हैं बहनों, तो हमेशा हम काम का आगाज किससे करेंगे, बिस्मिल्लाह से करेंगे। तो जो बिस्मिल्लाह कहने से एक तो इबादत हो रही है, हाँ, अल्लाह के नाम से शुरू हो रहा है तो अल्लाह की मदद आएगी, अल्हम्दुलिल्लाह, है ना। और बरकतें होंगी अल्लाह के नाम से। तो हमेशा हम क्या करें बहनों, अल्लाह के नाम से शुरू करें। ये सब बातें कहाँ मालूम होती है बहनों, ऐसी क्लासेस में, करेक्ट। देखो बहनों, कितने डिग्रीज हमारे पास है, कितने सर्टिफिकेट्स हमारे पास है, ट्रॉफीज है, कप्स है ना। कोई मैन ऑफ द मैच जीता होगा, यानी कितने सारे अवार्ड, कितने लोग जॉब्स में जीतते हैं। मगर अल्लाह की नजर में बहनों वो इंसान जाहिल है, अनपढ़ है, जिसके पास कुरान का नॉलेज नहीं, जिसके पास कुरान का इल्म नहीं। तो इंशाल्लाह इंशाल्लाह हम ये फिक्रे करेंगे कि हम क्या करेंगे, हम क्या करेंगे बहनों, कुरान का नॉलेज गेन करेंगे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो पहला तो क्या है बहनों, अल्लाह ने शुरुआत ही कैसे की, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के बाद अल्हम्दुलिल्लाह। तमाम तारीफें, तमाम शुक्र किसके लिए है, अल्लाह ही के लिए है, जो रब है आलमीन का। तो आगाज, शुरुआत मसलों से नहीं हो रही है,
फिक की बातों से नहीं हो रही है, यानी फिक की बातें यानी कि मसले मसाइल से नहीं हो रही है ना। और अल्लाह तबारक ताला जो है वो डरा नहीं रहा है, शुरुआत में कोई डरने की आयत नहीं है, कोई डूज एंड डोंट्स नहीं है कि ये मत करो ऐसा करो, नहीं, है ना। अल्लाह तबारक ताला ने सूरह अल फातिहा की शुरुआत किससे की है बहनों? तमाम तारीफें, तमाम शुक्र से की है अल्लाह तबारक ताला की। अल्हम्दुलिल्लाह। तो सूरह फातिहा जो है वो एक दरवाजा जो है वो खोल देता है, किसके बीच में? अल्लाह और अल्लाह के बंदे के बीच में ये एक दरवाजा है, जिसकी पहली की 3 आयतें जो है ना बहनों, पहले की 3 आयतें वो अल्लाह की तारीफें हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। और आखिरी की 3 आयतें जो है वो क्या है? वो जो है वो दुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह। और बीच की जो आयत है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ये क्या है बहनों? ये जो है अल्हम्दुलिल्लाह ये बेहतरीन चीज है बहनों। सॉरी, लास्ट के जो 3 आयतें हैं वो अल्लाह का तारुफ है बहनों। पहले की जो 3 आयतें हैं वो अल्लाह के तारुफ है, आखिरी के 3 आयतें एक दुआ है, और बीच की चौथी आयत बंदा और रब के बीच में तारुफ है। यानी बंदा क्या कह रहा है कि ईया का नाबुदू, या अल्लाह मैं तेरी ही बंदगी करती हूँ, और या अल्लाह मैं सिर्फ और सिर्फ तुझसे ही मदद चाहती हूँ। यानी कि यहाँ पर मैंने तमाम शिर्क से मैंने जो है वो क्या कर दी? नफी कर दी, मैंने मना कर दिया है ना, मैंने नो नेगेटिव कर दिया कि या अल्लाह सिर्फ तू ही है, या अल्लाह सिर्फ और सिर्फ तू ही है जिसकी हम क्या करते हैं? बंदगी करते हैं। तो कोई भी गैरुल्लाह मेरे मेरे जिंदगी में और मेरे जहन में नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मेरा रब है जिसकी मैं क्या करती हूँ? बंदगी करती हूँ। मैं किसी गैरुल्लाह के पास नहीं जाती, किसी गैरुल्लाह से नहीं मांगती, किसी गैरुल्लाह के सामने नहीं झुकती, किसी गैरुल्लाह के तरफ जो है वो उम्मीदें नहीं रखती, खौफ नहीं रखती, है ना। ओनली अल्लाह, यस, ओनली अल्लाह। और सिर्फ मैं अल्लाह से ही क्या मांगती हूँ? मदद मांगती हूँ, स्ट्रेंथ मांगती हूँ, है ना। तो ये आयत क्या करती है बहनों? हमारे और अल्लाह के बीच में ये क्या करती है? कनेक्ट कर देती है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो बहनों जब बंदा अल्लाह की तारीफ करता है, अल्हम्दुलिल्लाह, जब बहनों हम जब अल्लाह की तारीफ करते हैं तो हम क्या होता है बहनों? शुक्र के जज्बात जो है वो निकलते हैं। जितना बंदा तारीफें करता रहता है, शुक्र करता रहता है, करेक्ट ना। और असल दुआ की रूह क्या है पता है बहनों? टू बी ग्रेटफुल। हमेशा हम अल्लाह का शुक्र अदा करें, दिल से, जुबान से, अमल से, करेक्ट। शुक्र जो है वो सिर्फ जुबानी ना हो बहन। अब समझो मेरा बच्चा है, हम्म मेरा बच्चा मुझे बार बार कह रहा है, मम्मी आई लव यू, मम्मी आई लव यू, मम्मी थैंक यू, मम्मी थैंक यू, तुम मेरा कितना ख्याल करते हो मम्मी, मेरे को खाना बना के देते हो, मेरा सब ख्याल करते हो, है ना। बच्चा जुबानी बहुत बोल रहा है, बहुत तारीफ कर रहा है। मैं कहती हूँ अच्छी बात है बेटा, जाओ मेरा वो काम करो, जाओ मेरा को पानी ला के दो, जाओ जाके पूरे बॉटल्स भर के रखो। और या मेरा बच्चा खड़ा हो जाता है कि मम्मी प्लीज यार ये सब मत बोलो, मैंने बोला ना शुक्र कर रहा हूँ, मैंने बोला ना मम्मी आई लव यू, दैट्स इट मम्मी, अब ये सब काम मत दो। तो क्या मेरे दिल में मेरे बच्चे की मोहब्बत आएगी बहनों? हाँ, मैं बोलूंगी अच्छा जब करने की बारी आई तो तू मुकर रहा है, तू हट रहा है, दिस इज नॉट योर रियल लव। जो रियल लवर्स होते हैं, जो रियल लव करते हैं, वो सेक्रीफाइस करते हैं, वो कुर्बानी करते हैं, जब कुछ बोला जाता है तो करते हैं, करेक्ट। उसी तरह बहनों हम भी हमेशा शुक्र दिल से करते हैं, जुबान से करते हैं, मगर क्या हम अमल से करते हैं बहनों? ये हमको देखना है, टटोलना है। जैसे मुझे मेरे अल्लाह ने आंख की नेमत दी है, हाँ, तो मैं अल्लाह से कहती हूँ या अल्लाह शुक्र है अल्लाह तूने मुझे आंखें दी, मैं अंधी नहीं हूँ, करेक्ट। तो क्या मैं उसको सिर्फ जो है जुबानी और दिल से करती हूँ कि अमल से भी करती हूँ? शुक्र कैसे करूंगी? कि जो चीजें मुझे अल्लाह ने देखने के लिए कहा है मैं वो चीजें देखूंगी, और जो बातों से अल्लाह ने मुझे कहा है कि मत देखो, मैं उन चीजों को नहीं देखूंगी। ये है मेरी आंखों की शुक्र की मैं नेमत जो है उसको कैसा मैं उसको अदा कर रही हूँ बहनों? उसका शुक्र कैसे अदा कर रही हूँ? अल्लाह के ओबीडियंस में, अल्लाह की फर्मा बरदारी में,
समझ में आ रहा है? अल्लाह ने मुझे जुबान दी, बोलने की सलाहियत दी, तो मैं उसको कहाँ लगा रही हूँ? गीबतों में, चुगलियों में, हाँ, पिक्चरों की बातों में, स्टोरीज में, क्या मैं उसमें लगा रही हूँ? या मैं उन बातों में लगा रही हूँ जो अल्लाह ने मुझे हुक्म दिया? जिक्र करो, तिलावत करो, है ना, अच्छी बातों का हुक्म दो, अच्छी दावतें दो बहनों। ये है उस चीज की, उसकी चीज की क्या हम कर रहे हैं बहनों? उस नेमत की कदर कर रहे हैं, उस नेमत का शुक्र अदा कर रहे हैं, है ना बहनों? तो ये हमारे अंदर हो, इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और बहनों पता है, हर चीज शुक्र करती है। जानवरों को देखो ना, अगर बिल्ली को दूध पिला दो, पैर चाटती है। रोटी अगर कुत्ते को दे दो तो वो वफादार बन जाता है ना? कितने हमने कहानियां सुने हैं, देखे हैं, कितने वफादार हो जाता है बहनों कुत्ता। कब्रिस्तान तक पहुंच जाता है, अपने उस ओनर को छोड़ता नहीं है ना? तो बहनों, अल्लाह को भी है ना बहनों, क्या चाहिए पता है? कि इंसान हमेशा जो है वो शुक्र करते रहे। नाशुक्री इंसान अल्लाह को भी नहीं पसंद। हमेशा हम मुस्कुराते रहे बहनों। अब यहाँ से मैं क्या सबक सीख रही हूँ? मैं भी क्या करूंगी, कभी नाशुक्री नहीं करूंगी। नाशुक्री करते करते बहनों एक नेगेटिव एनर्जी निकलती है बहनों, जो बहुत ही नुकसानदेह है बहनों। सुबह उठते हैं, सबको बोलते हैं अरे मेरी तबीयत ठीक नहीं है, यहाँ दर्द है, वहां दर्द है, तुमको क्या मालूम मेरी हालत कैसी है? सुबह से खाई नहीं, सुबह से पी नहीं, रात को अच्छे से सोई नहीं, ऐसा किसी ने बोल दिया, वैसा किसी ने बोल दिया। यानी फोन उठाओ तो सिर्फ शिकायतें, कंप्लेन ही चालू रहती। क्यों बहनों हम ऐसे क्यों हो जाते हैं? क्यों हम एक पॉजिटिव एनर्जी लेके नहीं चलते? क्यों हम अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते कि या अल्लाह, तूने मेरी सांसें बाकी रखा? पता है बहनों, कल ही एक वाकया हुआ, कल ही एक वाकया हुआ कि हमारे एक दूर के रिश्तेदार है। वो संडे के दिन था बहनों, अच्छा, तो संडे का दिन रात को उसने कुछ खाना वाना खाई, ओके, और खाना खा के बहनों वो सो गई रात में। और पता है मंडे के दिन, मतलब उसको सुबह उठा रहे, यानी कल जब उसको उठाया जा रहा है, वो नहीं उठी बहन। वो जो सोई वो सोई गई, यानी उसकी रूह निकल गई बहन। उसके छोटे छोटे दो बच्चे हैं, उसका हस्बैंड भी है, और उसकी रूह निकल गई बहन। तो क्या मैं जब सुबह उठती हूँ तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करूं कि या अल्लाह, तूने मेरी रूह को वापस दे दिया, तूने मेरी सांसें बाकी रखा, तूने मुझे ईमान की दौलत से उठाया। कितने लोग ईमान से हट रहे बहनों, कितने बच्चे अथिस्ट हो रहे, नास्तिक और आस्तिक हो रहे। तो अल्लाह का मैं शुक्र अदा नहीं करूं कि मैं ये उम्मत की हूँ, मैं मुसलमान हूँ। हाँ, मैं अल्लाह के फजलो करम से, कुरान से जुड़ी हुई हूँ। खाली शिकायत शिकायत, कंप्लेन कंप्लेन कंप्लेन, हमारा ही नुकसान हो रहा है बहन। समझ में आ रहा है? किसी का नुकसान नहीं हो रहा है। जो औरत शिकवा शिकायत करती है, रोती रहती है, उसको कोई पसंद नहीं करता। और जो बहन मुस्कुराती है, जो हंसती है ना बहनों, जो हंसती है उसका घर, बोलते ना, जो हंसता है उसका घर बसता है। तो हमेशा मुस्कुराए, हमेशा खुश रहे, हमेशा शुक्र करे। हालांकि घर में तूफान रहेगा, हालांकि दिलों में तूफान रहेगा बहनों, मगर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं तुझसे राजी हूँ अल्लाह, मैं खुश हूँ अल्लाह। तू अल्लाह मेरे से, मतलब मैं जो भी सिचुएशन में हूँ अल्लाह, मैं खुश हूँ, मैं राजी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हमेशा हम अल्लाह का शुक्र अदा करें। हमेशा हम क्या करेंगे? अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह। तो राहे हिदायत यही है कि हम हमेशा शुक्र अदा करें। यहाँ पे मैं एक वाकया जरूर बताऊंगी। ओके, सूरह फातिहा में एक वाकया भी आ रहा है, ताकि आप लोग का ध्यान और ज्यादा लगे। एक गुलाम का वाकया है बहनों। एक गुलाम था, वो एक बार जंगल में था बहनों, कि एक उसने देखा कि एक शेर के पैर में कांटा लगा हुआ था। ओके, वो जमाने में गुलाम, वो भाग, मतलब गुलाम को बहुत टॉर्चर करते थे बहनों। गुलाम जो था वो आजाद नहीं होता था, उसको बहुत टॉर्चर किया जाता था, उससे उस पर बहुत जुल्म किया जाता था। पर एक बार वो गुलाम जो था वो जंगल में भाग गया, और भाग के उसने देखा कि एक शेर है जिसके पैर में कांटा लगा हुआ है। तो वो जाता है उसके पास, उस शेर के पास, ओके, और वो बिना डरे क्या करता है, उसके पैर से कांटा निकालता है। और जब वो कांटा निकालता है तो शेर जो था, देखो शेरों जानवरों को भी होता है ना बहनों, कि किसी ने तकलीफ की चीज निकाल दिया, तो उसने क्या किया, उसको सूंघा,
उस गुलाम को उसने स्मेल किया, वो लोग को सलाहियत होती है ना, वो लोग सूंघते रहते हैं हर चीज, तो वो करीब गया गुलाम के, उसको स्मेल करता है, सूंघता है, चला जाता है। ओके, अब क्या होता है, बहुत दिन गुजर जाते हैं, यानी कि एक 10-15 दिन गुजर जाते हैं, एक हफ्ता गुजर जाता है, जो भी है वल्लाहु आलम। अब क्या होता है, कुछ दिन के बाद ये गुलाम को क्या करते हैं, जो फौज वाले होते हैं, जो राजा होता है, जिसके फौजी होते हैं, वो पकड़ लेते हैं। ओके, और क्या करते हैं बहनों, उसको लेके जाते हैं। और वो जमाने में जैसे कि अभी कैसा स्टेडियम होता है जहाँ पे सब बैठ के क्रिकेट देखते हैं, उसी तरह बहनों एक मैदान होता है जहाँ पे वो लोग क्या करते हैं, पूरे लोग घेर के देखते हैं, तमाशा देखते हैं। एंटरटेनमेंट होता था वो जमाने का। और वहां पे बीच में वो लोग क्या करते थे, गुलाम को लाके जो है वो फेंकते थे, जितने भी गुलाम होते थे उनको फेंकते थे। और उनको जो है भूखे शेरों को उनके ऊपर मुसल्लत कर देते थे, उनके ऊपर डाल देते थे, ताकि जो है वो तमाशा देख सके कि भूखे शेर जो है उनको काट रहे, उनको मार रहे, उनको चीर रहे हैं ना, ये सब उनको देखने का मजा आता था। ओके, तो क्या हुआ बहनों, एक शेर जो था वो वैसे ही एक गुलाम को भी उस मैदान में डाल दिए, और वो शेरों को आजाद कर दिए। और वो शेर आ गया बहन, जिसका जो कांटा इसने निकाला था, वो शेर बराबर आ गया। और ये बराबर क्या करता है, इस गुलाम को सूंघता है और समझ जाता है बहनों कि वही गुलाम है जिसने क्या किया था, एक बार उसका कांटा निकाला था। और क्या करता है बहनों, उसको सूंघता है और चला जाता है, इनफैक्ट उसकी हिफाजत भी करता है, अल्हम्दुलिल्लाह। तो बताने का मकसद ये है बहनों कि इंसान जो है, अगर कोई कोई किसी पर एहसान करता है तो वो कभी भूलता नहीं बहनों, है ना। जानवर भी नहीं भूलते। पर हम, इतने सारे अल्लाह की बेशुमार नेमतें हम पर रात दिन गिर रहे, रात दिन बरस रहे बहनों, है ना। हम सांसें भी जो आज ले रहे हैं ना बहनों, ये अल्लाह का इतना शुक्र, एहसान और करम है। क्योंकि हाल ही में मेरी सास को हुआ था कि जब उनकी सांसें, मेरी मदर इन लॉ, उनको जब सांसों की तकलीफ हुई, तो पता चला बहनों, मुझे पहले बिल्कुल नहीं पता था। मैं सुनती थी कोरोना में कि बहुत सारे लोगों का ऑक्सीजन लेवल ये हो गया, वो हो गया, सुनते थे ना बहनों, देखा नहीं था। मगर जब मैंने मेरे घर में ये एक्सपीरियंस देखी कि कैसा जो है वो देखते हैं ऑक्सीजन लेवल, फिर उनको ऑक्सीजन लगाया जाता है और उनका ऑक्सीजन उनको दिया जाता है, तब मुझे समझ में आया कि अल्लाह तेरा कितना बड़ा एहसान और करम। क्योंकि जब उनका बिल आया तो पता चला कि कितने पैसे ऑक्सीजन के लिए लगते हैं बहन, बहुत एक्सपेंसिव होता है ऑक्सीजन। तो तब समझ में आया कि या अल्लाह तेरा शुक्र, एहसान और करम कि तूने हमारी सांसें हमको लेने वाला बनाया, है ना। फ्री का ऑक्सीजन हमको दे रहा है, अल्हम्दुलिल्लाह। आंखें, हाँ, इतनी बड़ी नेमत और दौलत। देखो ना बहनों, कितने सारे लोग हैं जिनकी बिनाई नहीं है, आज तरस रहे कि कोई उनको डोनेशन दे, कोई उनको आंखें डोनेट करे, पैसे नहीं है उनके पास बहन। आँख कितनी बड़ी नेमत है। सांसें जो चल रही है बहनों, आज हमारा भी वक्त हो सकता है ना कि भाई वक्त हो गया, खत्म इंसान। हाँ, आज हमारे ऊपर भी कोई पर्स पड़ेगा, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन। पर अल्लाह ने हमें जिंदगी दिया, अल्लाह का कितना बड़ा एहसान और करम, अल्हम्दुलिल्लाह। पता है बहनों, उससे पहले कि कोई हम पर ये पड़े, इन्ना लिल्लाही व इन्ना इलैहि राजिऊन, क्या मतलब होता है बहनों, कि अल्लाह ही के लिए है, इन्ना लिल्लाही, अल्लाह ही के लिए है, व इन्ना इलैहि राजिऊन, और अल्लाह ही की तरफ मेरा लौटना है, पलटना है। हाँ, ये ऐसा ना हो कि लोग मेरे मरने के बाद मुझे बोल रहे हैं कि ये अल्लाह ही की है और ये अल्लाह ही की तरफ पलट गई। नहीं, मुझे पहले दुनिया में ऐसा होना है, मुझे पहले दुनिया में मेरा अल्लाह का मुझे बनना है। मैं अल्लाह की हूँ, मुझे अल्लाह का बनना है। जब हम लोग बोलते हैं कि बच्चा मेरा है, मेरा, तो कैसा होता है ना बहनों, बच्चा बराबर हुकूक अदा करता है ना। बच्चा बचपन से देखता है कौन कौन मुझे देख रहा है, मेरा ख्याल रख रहा है, और वो बच्चा बराबर बड़ा होके वो हक अदा करता है, क्योंकि वो देखता है कौन क्या कर रहा था। अल्लाह को हमारे इस खिदमत के बदले, इस बंदगी के बदले कुछ नहीं चाहिए बहनों। अल्लाह बेनियाज है, अल्लाह इंडिपेंडेंट है। अल्लाह देखो बहनों, उसको कुछ नहीं चाहिए, है ना। हमारी बंदगी, हमारी तौहीद, हमारे कलमे, जो भी हम कर रहे हैं उसके बदले में उसको कुछ नहीं चाहिए, है ना।
जो भी हम कर रहे हैं बहनों ये हमारे लिए ही है, ये हमारा ही इसमें फायदा है। अल्हम्दुलिल्लाह। तो उसके पहले के लोग मेरे मैयत पर आके ये बोले मुझे दुनिया में ही मेरा अल्लाह का होना है, उससे पहले कि मैं अल्लाह के पास मेरा रिटर्न टिकट आ जाए, उससे पहले कि मैं किसकी हो जाऊं, मेरे रब्बुल आलमीन की हो जाऊं, मेरे अल्लाह की मैं हो जाऊं। तो हम क्या करें बहनों, हमेशा शुक्र अदा करने वाले बने। जितना शुक्र अदा करोगे उतना ही अल्लाह से जुड़ोगे। और अल्लाह तबारक ताला जितना हम शुक्र करते हैं अल्लाह ताला उतना ही ज्यादा नेमतों से नवाजता है। अल्हम्दुलिल्लाह। जितना शुक्र अदा करते हैं उतना ही अल्लाह ताला की मोहब्बत हमारे दिलों में उतरेगी बहनों। अल्हम्दुलिल्लाह। शुक्र करने वाले बंदों में से हम बने, बेहतरीन शुक्र करने वालों में से बने हर हाल में बहनों। याद है ना अभी हाल ही में जो अर्थक्वेक्स आए थे बहनों, सीरिया में, टर्की में, पता है बहनों उनके सेकेंड कुछ 40 या 30 सेकंड में बहनों उनके पूरे घर उजड़ गए, उनकी पूरी फैमिली खत्म, पूरा पैसा खत्म, प्रॉपर्टी खत्म, सिर्फ उनकी जान बाकी थी। बाकी वो लोग देख रहे सब खत्म हो गया। और वो लोग उस हालत में भी क्या बोल रहे, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोल रहे। इतना रोना रोना आता था बहनों वो वीडियोस देख के। हाँ, इतना रोना रोना आता था कि क्या ईमान का दर्जा। यहाँ पे तो मुझे एक टाइम का खाना नहीं मिलता, या रिपीटेड खाना मिल जाता है तो शिकायतें चालू हो जाती। हाँ, शौहर को हम लोग बोलते तुमने क्या किए क्या दिए, वो बेचारा पूरा टाइम देता रहता है, खिलाता रहता है, करता रहता है, फिर भी हम लोग नाशुक्री के अल्फाज कह देते हैं, है ना। मम्मी डैडी को बोल देते हैं, सबको करते रहते हैं हम। कि हम लोग उठते भी है, अच्छा नाश्ता भी करते हैं, अच्छा खाते भी है, अपने घरों में सलामत भी है। कोई भी फोन करेगा पूछेगा कैसा है, कैसे हो, तो हम लोग बोलेंगे हाँ अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ, पर क्या बोलूं अभी छोड़ना, मेरी तकलीफ मुझे च मालूम क्या तकलीफ हो रही है ना। कैसा कैसा हम लोग, यानी कि जो नेमत मिल रही है उसका जिक्र नहीं है, उसका शुक्र नहीं है, सिर्फ हमको जो एक दर्द रहेगा ना उसके बारे में बराबर बोलेंगे, है ना। इतनी रातें हम सुकून से सोए ना बहनों, वो कभी हम नहीं बोलेंगे, उसका शुक्र अदा नहीं करेंगे, हाँ, उसकी कदरदानी नहीं करेंगे। पर एक रात नहीं सोएंगे ना, उसको बराबर सबको बोलेंगे मैं सोई नहीं, मैं सोई नहीं, मैं सोई नहीं, मैं सोई नहीं, है ना। अरे क्या हो गया भाई, 70 कितने 30 साल 40 साल से सो रही हूँ, एक रात नहीं सोई तो क्या, क्या तूफान आ गया। हाँ, क्या हो गया भाई। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह मैं इस पर भी राजी हूँ। या अल्लाह एक दर्द आ गया था, या अल्लाह मैं उस पर भी राजी हूँ। या अल्लाह बुखार आ गई थी, या अल्लाह अय्यूब अलैहिस्सलाम कैसे थे बहनों, कितने साल उनको अल्लाह ताला ने सब कुछ दिया, और बीमारी में भी वो क्या बोल रहे, जब अल्लाह तबारक ताला ने उनको बीमारी दी, उनके औलाद को जो है अल्लाह ताला छीन लिया, उनका घर बार सब चला गया ना बहनों, सिर्फ उनका जिस्म था उनके साथ। हाँ, तो उसमें भी वो क्या बोल रहे हैं, या अल्लाह तेरा शुक्र है अल्लाह। हाँ, पहले तो या अल्लाह ये सब चीजें बीच में आ रही थी, बच्चे बीच में आ रहे थे, घर बीच में आ रहा था, प्रॉपर्टी बीच में आ रही थी, ये जो मेरे जानवर थे ये सब बीच में थे, है ना, सबको देखना पड़ता था, करना पड़ता था। अब सब चला गया अल्लाह, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तेरे और मेरे बीच में अब कोई नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह, अब मैं तेरे साथ और ज्यादा टाइम रहूंगा, और तेरे जो है वो इबादत करूंगा और दुआएं करूंगा। ये हमारा जो है वो क्या होना चाहिए, किरदार होना चाहिए। सबसे ज्यादा बहनों बोलने वाला मोहताज है। तो अल्लाह से दुआ मांगते हैं कि अल्लाह तबारक ताला हमको ऐसा बना दे। आमीन आमीन आमीन। हाँ, शुक्र गुजारी। हाँ, अल्लाह ताला क्या कहता है, जिसको शुक्र गुजारी की नेमत अता हुई उससे जो है मजीद नेमतें जो है वो अता होते रहेंगे, और अल्लाह तबारक ताला उन नेमतों को कभी नहीं रोकेगा। जितना शुक्र करोगे, जितना शुक्र करोगे उतना ज्यादा क्या मिलेंगे, हमको नेमतें मिलेंगे। हम्म अल्हम्दुलिल्लाह। तो अल्लाह से दुआ है बहनों, बहुत सारी दुआएं हैं, हमको तो कुछ नहीं आता। यहाँ पे हम मांग रहे हैं ना बहनों, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह सीधे रास्ते की हिदायत दे, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो यहाँ पे बहनों
हम हिदायत की दुआ मांग रहे, सीधे रास्ते की दुआ मांग रहे। उसी के साथ हम अल्लाह से मांगे कि या अल्लाह मैं कैसे मेरे बच्चों को पालूं, मुझे नहीं आता। या अल्लाह मैं कैसे घर चलाऊं, मुझे नहीं आता। या अल्लाह मैं कैसे बेहतरीन औरत बनूं, बीवी बनूं, बच्ची बनूं, मुझे नहीं आता। या अल्लाह उसकी भी हिदायत दे। या अल्लाह कैसे ये जुबान चलाऊं, मुझे नहीं आता। या अल्लाह तू मुझे उसकी भी रहनुमाई दे, है ना। उसका भी गाइडेंस हम मांगे बहनों। ना हमको ये जिंदगी जीने आता है ना। कितनों का हम दिल तोड़ देते हैं, कितने काम बर्बाद कर देते, कितने काम उल्टे सीधे करते, कितने दिलों को तोड़े हैं बहनों। कितनी बदजुबानी, बद कलामी, कितनी गालियां, कितनी बदवाएं, पता नहीं क्या क्या तो हम लोग पूरा दिन करते रहते हैं ना। अल्लाह से दुआ करेंगे कि या अल्लाह रमजान का मुबारक महीना आ रहा है, उसके पहले पहले तू मुझे हिदायत के फैसले कर दे। कैसे ये जिंदगी गुजारना है, कैसे ये जिंदगी जीना है, मुझे नहीं आता अल्लाह। मुझे तू जीने वाला वैसा बना दे। आमीन आमीन आमीन। सीधे रास्ते पे चलने वाला बना दे। वो रास्ते पर, जिन रास्ते पर तूने इनाम फरमाया, और वो रास्ते पर मुझे मत चला या अल्लाह जो लोग गुमराह हो चुके, और वो लोग जिन पर तेरा गजब है ना, जिन लोगों पर तेरा गजब है, नाराजगी है। या अल्लाह वैस उन लिस्ट में हमारा नाम नहीं आए, है ना। कितने लोग हैं बहनों जो क्या हो गए, गुमराह हो गए, जिनको अल्लाह ताला ने हिदायत दिया, पर वो हिदायत को नहीं लिए, उन्होंने हिदायत को छोड़ दिए। हाँ, देखो बहनों, जो चीज ऐसी रहती ना, खड़ी रहती है, वो खराब हो जाती है। पानी भी बहुत दिन तक रहता है ना बहनों, वो भी खराब हो जाता है ना। खड़े रहता है पानी, हम लोग बोलते हैं स्टिल वाटर बिकम स्टैग्नेंट, है ना, बास आने लग जाती है उसमें। तो उसी तरह बहनों, अगर हमारे पास इल्म है तो हम उसको ले, हम उस पर अमल करें। देखो क्रिश्चियंस को, जो ईसाई थे, उनको इल्म मिला, पर उन्होंने उसका सही जो है उसको लेकर नहीं चले। देखो गाड़ी भी खड़ी रहती है बहुत दिनों से, गाड़ी नहीं लेकर आ जाओ, न्यू गाड़ी लेकर आ जाओ, न्यू मशीन लेकर आ जाओ, उसको चलाओ ही नहीं, चलाएंगे, गाड़ी भी क्या होगी, खराब हो जाएगी। मशीन भी क्या होती है, खराब हो जाती है ना। गाड़ी को भी हीट करना पड़ता है, चलाना पड़ता है, तब जाके वो गाड़ी सही रहती है। उसी तरह बहनों, ये जो हिदायत का नूर हमारे पास आ चुका है, उसको हमारी जिंदगी में लाना बहुत जरूरत है। उसको सिर्फ हम सुन रहे सुन रहे सुन रहे ऐसा ना हो, उसको क्या करेंगे, हम लेकर चलेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। तो ही हमको क्या होगा, उसका फायदा होगा इंशाल्लाह। यहाँ पर जो है मैं सूरे अल फातिहा को मुकम्मल करती हूँ, अल्लाह से दुआ करती हूँ। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो मैंने पूरा नहीं की, जिसका हक अदा नहीं की, ओके। मैंने उसको एक ऊपरी तौर से लेकर आई हूँ कि हम डेली लाइफ में क्या करेंगे, शुक्र करने वाले बंदे बनेंगे। सबसे पहली चीज, शुक्र शुक्र गुजार रहेंगे। देखो हम लोग जो अपने फैमिलीज में रहते हैं, हाँ, हमेशा ससुराल में हम बुराई करते रहते हैं। ससुराल की बुराई, ससुराल वालों की बुराई, है ना। मेरा मायका अच्छा, मेरे घर वाले अच्छे, ये सब तू मैं में अपने घर बर्बाद हो जाते हैं बहनों। समझ में आ रहा है। जो हम लोग बोलते हैं मैं बड़े खानदान से आई, मैं वो घर से आई, तुम लोग ये खानदान के, तुम लोग ऐसे, तुम लोग वैसे, है ना। मेरे घर में ऐसा नहीं होता, तुम्हारे घराने में ऐसा होता। ये सब बोल के हम लोग क्या करते हैं बहनों, हमारी लाइफ बर्बाद करते हैं। झगड़े फसाद इसी से होते हैं बहनों। तो जिस हालत में भी अल्लाह ने हमको रखा है, हम शुक्र करने वाले बने। अल्लाह ने अगर मुझे बड़े खानदान से ये खानदान में लाया, तो अल्लाह की उसमें भी कोई मसलियत रहेगी। अल्लाह ताला चाहता होगा कि मेरे जरिए वहां पर हिदायत आए। अल्लाह ताला चाहता होगा कि मैं वहां पर जो है वो ये नूर की बातें करूं, है ना। तो हो सकता है कुछ ऐसा रहेगा, हम वहां की शिकायतें ना करें बहनों, मगर वहां पे रह के हम कभी भी क्या करें, पॉजिटिव, हम लोग पॉजिटिव एनर्जी फैलाए। हम क्या करें, शुक्र करने वाले बने इंशाल्लाह। और हमेशा हम क्या करें, अच्छी बातें करें, नूर को फैलाए, दावत कुरान को वहां पे करें, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। होगा ससुराल सही नहीं है, हम वहां पे अच्छे बने, अच्छे काम करें, है ना। वो दीन से दूर है, अल्लाह ने हमको हिदायत दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह, मैं यहाँ पे हिदायत को फैलाऊंगी, है ना। अल्हम्दुलिल्लाह। तो जो भी है बहनों, जिंदगी को लेकर चले, जो भी हालत में अल्लाह ताला ने हमको रखा है, हम उससे राजी रहेंगे,
हम अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे। हाँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह से हमेशा हिदायत मांगते रहेंगे। अल्लाह से कहेंगे कि या अल्लाह, जिन पर तेरा इनाम है उस रास्ते पर चला, और उन रास्ते पर मत चला जो गुमराह हो गए, जिन पर तेरा गजब है, गुस्सा है। ओके। और हमेशा हम क्या करेंगे, अल्लाह ही की इबादत करेंगे, और अल्लाह ही की क्या करेंगे, अल्लाह ही से मदद चाहेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। जैसे कि इसका हक था बहनों, मैंने अदा नहीं की। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला हम सबको सूरह अल फातिहा की तमाम बरकतें, फजीलतें बारिश की तरह हम पर बरसा दे। आमीन आमीन आमीन। हर आयत पर चलने वाला बना दे, हमको शुक्र गुजारों में से बना दे। ना शुक्री कुफर है बहनों, ना शुक्री कुफर है, कुफर याद रखना। अल्लाह को पसंद ही नहीं है। अल्लाह का गुस्सा गजब आ जाता है जब बंदा नाशुक्री करता है, उसकी नेमतों को खाता है, उसकी नेमतों को इस्तेमाल करता है, और फिर ना नई की बमड़ी, नहीं 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 है, नहीं है, नहीं है, और नई 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 करते वो नहीं हो जाता। बहन, समझ में आ रहा है? हमेशा खुश रहे, कंटेंट रहे, हमेशा बोले सब कुछ है मेरे पास, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं अल्लाह के जो है इस पर भी क्या हूँ, राजी हूँ। अल्लाह से जो राजी होता है ना बहनों, अल्लाह उससे राजी हो जाता है। तो हमेशा जिंदगी के हर मोड़ में, हर फैसले में, हर जगह में हम क्या रहे, अल्लाह से राजी रहे। अल्लाह तबारक ताला हम सबको उसमें से बना दे। आमीन आमीन आमीन। सबको बहनों यहाँ तक सूरह अल फातिहा जो है वो समझ में आया? जी आपा, अल्हम्दुलिल्लाह। जी अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। किसी को कोई बात है जो नहीं समझ में आई, कोई वाकया? सबको सब बातें क्लियर है बहनों? अल्हम्दुलिल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ही का फजल और करम है बहनों, अल्हम्दुलिल्लाह। फिर मैं नेक्स्ट आ जाती हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ पर? जहाँ पर जो है सूरह अल बकरा शुरू हो रहा है। सूरह अल बकरा जैसे कि आप सब जानते हैं कुरान में दूसरा सूरा है। जो पहले पारा हम कर रहे बहनों, उसमें सूरह अल बकरा की 141 आयतें हैं। इसका पढ़ना बहुत फजीलत है, इसका छोड़ना हसरत है। अल्हम्दुलिल्लाह। और अल्लाह देखो बहनों, हम बार बार हिदायत मांग रहे हैं ना। हम क्या कह रहे हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, या अल्लाह हिदायत दे, हिदायत दे, हिदायत दे, है ना। और हम जो है नमाज में तकरीबन 17 बार सूरह अल फातिहा पढ़ते हैं, और अल्लाह से मांगते हैं कि या अल्लाह हिदायत दे, हिदायत दे, हिदायत दे। और अल्लाह तबारक ताला ने सूरह अल बकरा से लेके सूरह अन नास तक क्या दे दिया, हमको हिदायत दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह। और ये हिदायत कैसे मिलेगी बहनों? हाँ, हिदायत की किताब तो अल्लाह ने दे दिया है ना, कुरान मजीद हमको अल्लाह ताला ने दे दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। मगर 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 मुझे फायदा कैसे मिलेगा इससे, जब तक कि मैं इसके साथ सीरियस नहीं हो जाती, संजीदगी, है ना, सीरियस नहीं हो जाती बहनों। यानी कि मैं बोल तो रही हूँ इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, तो अब जो है अल्लाह ने पूरा कुरान मेरे लिए खोल दिया। सूरह अल बकरा से सूरह अन्नास तक खोल दिया। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए तड़पना होगा, इसकी फिक्रे करना होगा, इसके लिए मेहनत करना होगा। अल्हम्दुलिल्लाह। और तभी जो है अल्लाह ताला क्या करेगा, मेरे लिए हिदायत के फैसले करेगा। हिदायत मांग रही हूँ ना बहनों, ऐसे ही नहीं आ जाएगी। मुझे एक एक आयत को समझना पड़ेगा, एक एक आयत पर चलना पड़ेगा। हाँ, तो तभी मेरे को हिदायत के फैसले होंगे, और तभी क्या होगा बहनों, मैं दूसरों को भी बता सकती हूँ। एक इंसान है बहनों, जो सूरज को देखकर आंखें बंद कर देता है, तो सूरज भी उसको रोशनी नहीं दे सकती। सूरज जो है ना, वो क्या करता है बहनों, रोशनी देने का काम करता है ना। वो तो वो चमकता रहता है, वो रोशन है और सबको रोशनी देता है। पर एक इंसान अपनी आंखें बंद कर लेता है, तो वो जो सूरज इतना बड़ा है, सबको रोशनी दे रहा है, वो बंदे को रोशनी नहीं दे सकता। और इसका रीजन क्या है, क्योंकि उसने आंखें बंद कर लिया। उसी तरह ये कुरान पूरे हिदायत की किताब है, बरकतों की किताब है, रहमतों की किताब है। अब मुझे चाहिए कि मैं मेरे आंखें खोलूं, इसको देखूं, इस पर चलूं,
اس کی रोशनी से, इसके नूर से फायदा उठाऊं, सीरियस हो जाऊं, इसके लिए तड़पूं, इसके सामने डरूं, है ना, आजिजी इख्तियार करूं। अल्लाह मैं कुछ नहीं हूँ अल्लाह, मैं बहुत बेकार हूँ अल्लाह, है ना, बहुत कमजोर हूँ अल्लाह, बहुत गुनहगार हूँ अल्लाह, मेरी रूह, मेरा जिस्म, सब सब खराब है अल्लाह, बहुत गुनहगार हूँ या अल्लाह, प्लीज अल्लाह, प्लीज अल्लाह, प्लीज अल्लाह, मुझे तू क्या कर दे, इस नूर से मुनव्वर कर दे। आमीन आमीन आमीन। सूर्य अल बकरा में बहनों 286 आयतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, मगर जो पहला पारा है ना, उसमें जो हम कर रहे हैं सूर्य अल बकरा, पहला जो जो पारा आज में जो है वो पहला जुज ही कर रही हूँ, पहला पारा ही कर रही हूँ, समझ में आ रहा है? तो सूर्य अल बकरा जो है वो 2.5 पारे का है, करेक्ट। और यहाँ पे जो है मैं पहला जुज कर रही हूँ, और जहां पे मैं 141 आयत ही कवर अप करूंगी, क्योंकि पहले जुज में उतना ही है, उसके बाद दूसरे जुज में आप इंशाल्लाह जो है वो जो है वो 3/4 होगा, और थर्ड पारे में यानी थर्ड जुज में जो है आयतल कुर्सी आएगी इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो जो भी न्यू है वो परेशान ना हो, ओके अल्हम्दुलिल्लाह। बस इतना सोच के चले, हम जो है वो पहला पारा कर रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम जो है वो क्या करेंगे, हिदायत की दुआ करेंगे। हिदायत कहाँ पर है? हिदायत कुरान में है, अल्हम्दुलिल्लाह। और बहनों यहाँ पे सूर्य अल बकरा की बहुत सारी फजीलतें हैं बहनों। इसका पढ़ना, इसके पढ़ने से शैतान जो है वो घरों से निकल जाता है। सूर्य जो है आयतल कुर्सी भी इसमें आती है, आमन रसूल भी इसमें आता है। बहुत जो है इसके बारे में आपको बताया जाएगा डिटेल में, जब आप क्या करोगे, हमारे क्लासेस ज्वाइन करोगे। ये जो सूरा अल बकरा है ये कल के दिन सिफारिश भी करेगा अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। और ये जो है वो कुरान का क्लाइमेक्स है बहनों, यानी कुरान का पीक है। कुरान का बोलते हैं ना ऊपर का हिस्सा, जैसे पहाड़ का एक ऊपर का हिस्सा होता है ना, पीक, उसी तरह ये भी क्या है बहनों, एक पीक ऑफ द कुरान है अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। कुरान की चोटी जिसको कहते हैं वो है ये, जैसे जो पहाड़ की चोटी होती है ना, वैसे ही ये कुरान की चोटी, कुरान का पीक है अल्हम्दुलिल्लाह। तो इसकी बहुत सारी फजीलतें आती है। कल सूरह अल बकरा और सूरह आले इमरान कल जो है अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो कल हमको साया देगी। हाँ, जब सूरज इतना करीब आ जाएगा, और अगर मैंने इसका हक अदा की रहूंगी, तो कल ये बादलों की शक्ल में या परिंदों की शक्ल में आके क्या करेगा, मुझे साया देगा अल्हम्दुलिल्लाह। तो हम इंशाल्लाह इंशाल्लाह क्या करेंगे, इसके हक को अदा करने की फिक्रे करेंगे। कहाँ करेंगे? जब ऐसी क्लासेस से जुड़ेंगे। बहनों यहाँ पर हम कोई होमवर्क नहीं देते, कोई टेस्ट नहीं, कोई एग्जाम नहीं, कुछ नहीं बहनों। यहाँ पर हमारी क्लासेस जो है फजर से लेके रात के इशा तक होती रहती है, ओके। अलग अलग टाइमिंग्स है, अलग अलग सूरतें, अलग अलग टीचर्स, अलग अलग दिन, यानी पूरा हफ्ता चलता रहता है अल्लाह के फजलो करम से। और जो न्यू बहनें हैं उनके लिए जो है हम न्यू क्लास चालू करेंगे रमजान के बाद, ओके। तो आप लोग प्लीज ज्वाइन करना। देखो बहनों, प्यासा जो है ना वो कुएं के पास आता है, कभी कुआं प्यासे के पास नहीं आता। अगर हमारी न्यू क्लास जो भी टाइमिंग्स है, जो भी डेज है बहनों, आपको उसके लिए फारिग होना है। आप लोग जो है ना फिर बोलते हैं, अरे आपा वो टाइम पे मेरे शौहर आते हैं, वो टाइम पे मेरा बच्चा आता है, आपा वो टाइम पे मैं सोती हूँ, आपा वो टाइम पे मैं बाहर जाती हूँ। तो बहनों हम भी कुछ नहीं कर सकते ना, हम भी कोशिश करते हैं, फिक्रे करते हैं कि हम जो है वो ऐसा करें कि सबको फायदा हो। तो आप लोग प्लीज जो भी दिन, जो भी टाइम बताया जाएगा, आप लोग अभी से नियत करें कि या अल्लाह प्लीज मेरे लिए आसान कर, प्लीज अल्लाह मुझे जुड़ने वाला बना, और या अल्लाह प्लीज मेरा पूरा एक कुरान जो है वो समझ के मुकम्मल हो जाए। जैसे जैसे एक एक आयत समझोगे ना बहनों, वैसे वैसे क्या होगा पता है, हिदायत के फैसले होते रहेंगे। ये नूर जैसे जैसे आएगा जिंदगी में, और वैसे वैसे अल्लाह ताला क्या करेंगे, हिदायत के फैसले करेंगे अल्हम्दुलिल्लाह, ओके। अब मैं आ जाती हूँ बहनों, इंसानियत के 3 किस्म ये सूर्य अल बकरा में अल्लाह तबारक ताला जो है वो हमको इंसानियत के 3 किस्म के बारे में बता रहा है। एक तो है मुत्तकी लोग, ओके, यानी कि मुत्तकी लोग वो है जो मुफलिहून है, जो कामयाब है अल्हम्दुलिल्लाह, उनके बारे में आता है।
दूसरे कैटेगरी के लोग कौन है, दूसरे किस्म के लोग कौन है? जो इनकारी है, जिन्होंने क्या किया, इनकार कर दिया, जो रद्द कर दिए, उनके बारे में सुम्युन बुकमुन यानी उमयून आता है, यानी कि वो क्या है, अंधे बहरे गूंगे बहनों, अंधे बहरे गूंगे लोग हैं। यानी वो लोग हैं जिनको हिदायत मिली मगर उन्होंने हिदायत का फायदा नहीं उठाया, है ना। अल्लाह ने उनको रोशनी दी मगर वो अंधेरों में रहना पसंद किए। और तीसरी कैटेगरी है मुनाफिकून, यानी कि हिपोक्रिट। ओके, इसके बारे में डिटेलिंग में आपको कहाँ पता चलेगा? क्लास में पता चलेगा। ओके, अब मैं आपको जो बता रही हूँ वो कैसे बता रही हूँ बहनों, जैसे कि एक मुख्तसर तौर पे बता रही हूँ। ओके, अल्हम्दुलिल्लाह, कि यहाँ पे अल्लाह तबारक ताला, जब हमने हिदायत मांगी तो अल्लाह ताला ने सूरह अल बकरा में हमको बता दिया। और यहाँ पर अल्लाह तबारक ताला जो है वो क्या कहता है कि हिदायत पर कौन है? हाँ, मुत्तकी लोग। और मुत्तकी लोग कौन है बहनों? वो लोग जो अल्लाह से डरते हैं, जो अल्लाह से शदीद मोहब्बत करते हैं, जो अल्लाह से बहुत उम्मीदें करते हैं, अल्लाह पर तवक्कल करते हैं। दे लव अल्लाह मच, वेरी मच, यानी एक्सट्रीम मोहब्बत अल्लाह से करते हैं, बहुत ज्यादा अल्लाह से डरते हैं, अल्लाह ही से इनकी उम्मीदें हैं, अल्लाह ही पर तवक्कल है, और अल्लाह ही से वो लोग हमेशा कॉन्शियस रहते हैं बहनों। दे ऑलवेज थिंक अल्लाह इज वॉचिंग, अल्लाह इज वॉचिंग। तो जो बंदा जो सोचता है ना कि मुझे अल्लाह देख रहा है, अल्लाह देख रहा है, अल्लाह इज वॉचफुल, है ना, अल्लाह मुझे देख रहा है, तो वो बंदा कभी भी क्या नहीं कर सकता? गुनाह नहीं कर सकता, है ना। तो ये होते हैं वो मुत्तकी बंदे जो क्या करते हैं, ईमान लाते हैं। और ईमान बिल गैब, यानी कि जो उन्होंने अल्लाह को नहीं देखे, आखिरत को नहीं देखे, जन्नत दोजख को नहीं देखे, मगर वो गैब की बातों पर क्या करते हैं? ईमान लाते हैं। जो भी हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतरा, हाँ, जो पहले की किताबें थी, पहले के नबी थे, उन सब पर वो लोग क्या करते हैं? ईमान बिल गैब, यानी कि वो उस पर ईमान लाते हैं। और जब वो ईमान लाते हैं बहनों, तो इनका, जब गैब पर ईमान लाते हैं तो हमारा ईमान जो है वो बढ़ता चला जाता है। और एक वक्त आता है कि वो बंदा अल्लाह के सामने झुक जाता है और वो क्या हो जाता है? नमाजी हो जाता है। वो नमाजों को कायम करता है। और जब वो नमाजों को कायम करता है तो नमाज उससे रोकती है बेहयाई और बुरी बातों से। और वो बंदा फिर क्या होता है बहनों, जब उसका ईमान बढ़ रहा है, वो अल्लाह के सामने झुक रहा है, फिर वो क्या करता है? खर्च करने का जज्बा उसके अंदर पैदा होता है। फिर ऐसा बंदा क्या होता है बहनों? खर्च करता है अल्लाह के रास्ते में, जो भी अल्लाह ने उसको दिया है उस पर वो अल्लाह के लिए वो क्या करता है? खर्च करता है। और ऐसा इंसान, उसका अकीदा जो है वो क्या हो जाता है? दुरुस्त हो जाता है आखिरत का। यानी वो बंदा समझ जाता है कि मैं दुनिया में क्यों आया हूँ, मेरे रब को राजी करने आया हूँ, मैं आखिरत की तैयारी करने आया हूँ। और वो वैसे ही चलता है, वो वैसे ही करता है जो अल्लाह ने उसको हुक्म दिया। और ऐसा बंदा फिर क्या होता है? फला पा लेता है। और वो कौन है? वो मुत्तकी है। तो हम अल्लाह से दुआ करेंगे कि अल्लाह तबारक ताला हमको कैसा बना दे? मुत्तकियों में से बना दे। आमीन आमीन आमीन। और उसी के ऑपोजिट कौन है बहनों? काफिर, है ना। काफिर है उसी का ऑपोजिट, उसी का बरक्स बोलते हैं ना। जो कैसा है? इनकारी, झुटलाने वाला, नाशुक्रा बंदा, जिसको हिदायत मिली बहनों, अल्लाह ने इसको भी हिदायत दी। अल्लाह ने कभी ऐसा नहीं है बहनों, हम लोग बोलते हैं वो काफिर के घर में पैदा हुआ, उसको क्या, उसका क्या कसूर है, वो बेचारे का क्या कसूर है, वो क्रिश्चियन के घर में था, वो यहूदी के घर में था। नहीं बहनों, कोई भी इंसान कहीं भी हो, कौन से भी कोने में हो, कोई भी मजहब का हो, अल्लाह तबारक ताला ने सबको ईमान पर पैदा किया। वो तो उसके माँ बाप है जो उसको क्या करते हैं? क्रिश्चियन बनाते हैं, यहूदी बनाते हैं, हिंदू बनाते हैं, हाँ। और फिर ऐसे इंसानों को भी अल्लाह छोड़ता नहीं है बहनों, कायनात की पूरी निशानियां बताता है उनको। उनको जो है कुरान आज भी मौजूद है उनके लिए, हिदायत के लिए। और अल्लाह तबारक ताला उनको हिदायत के फैसले जरूर करता है। कहीं ना
نہ کہیں وہ اپارچونٹی، وہ ہدایت ان کے پاس آتی ہے، ان کے دروازے پر آتی ہے بہنوں، یہ کافروں کے پاس. اور پھر یہ لوگ اگر کسی بندے نے اس کو لے لیا الحمدللہ، اور اگر کسی نے جان کر بھی انجان ہو گیا تو اللہ تعالیٰ ایسوں کو ہدایت نہیں دیتا. فار ایگزامپل میں بتاتی ہوں بہنوں، ایک ایکٹریس تھی، ایک ایجپشین ایکٹریس تھی بہنوں. ہاں وہ مطلب ایک کوئی اور ہی ایکٹریس تھی جو اتنی مطلب خراب تھی. ابھی ایکٹریس بولیں گے تو سب کرنا پڑتا ہے، وہ بھی فورن کی ایکٹریس تھی بہنوں. مگر ایک بار اس کی شوٹنگ کہاں ہوئی؟ ایجپٹ میں ہوئی. اور جب وہ ایجپٹ آئی بہنوں تو وہ اپنے ہوٹل کے روم میں تھی، اس کو بور ہو رہا تھا اور اس نے کچھ ٹی وی یا ریڈیو کچھ تو لگا لی جہاں پہ قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی بہن. یعنی ہدایت کہاں آئی؟ اس کے دروازے پہ آئی. سمجھ میں آ رہا ہے؟ وہ کون تھی؟ ایک خراب عورت، ایک ایکٹریس، ایک کافر جس کو کچھ نہیں پتا اسلام کا، اے بی سی ڈی بھی نہیں پتا. مگر اللہ تبارک تعالیٰ ہر ایک کو ہدایت دیتا ہے بہن، ہدایت آتی ہے ان کے پاس. اب یہ بہن چاہتی تو وہ ٹی وی کا چینل چینج کر دیتی یا بند کر دیتی، پر اس نے ایسا نہیں کیا بہنوں. اس نے اس کو سنی، اس کو پسند آیا، اس نے اس کی طرف اس کا دل مائل ہو گیا. اس نے گوگل کی، اس نے لوگوں سے پوچھی کہ بھائی یہ جو ہو رہا ہے یہ کیا ہے، یہ کیا جو ہے وہ کیا ہو رہا تھا. تو لوگوں نے اس کو کہا کہ وہ قرآن کی تلاوت تھی، اذان تھی، جو بھی تھا. لوگوں نے اس کو بتایا، سمجھایا، اور وہاں سے اس کے کیا ہوئے؟ ہدایت کے فیصلے ہوئے. اگر وہ چاہتی وہ نظر انداز کرتی، وہ اپنے آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتی، کانوں میں روئی ڈال دیتے نا لوگ، تو یہ بھی اگر چاہتی تو کرتی. پر دیکھو بہنوں اس نے ایسا نہیں کیا. تو ہر ایک کو ہدایت آتی ہے بہن، ہر ایک کو ہدایت آتی ہے. ایسا کوئی بندہ، کوئی کرسچن، کوئی بھی بول نہیں سکتا کہ میرے کو ہدایت نہیں ملی. اللہ تعالیٰ رحیموں کا رحیم ہے، سب کو ہدایت دیتا ہے. مگر لوگ کیا کرتے ہیں؟ اپنے کانوں میں روئی ڈالتے ہیں، جان کر بھی انجان ہو جاتے، سن کر بھی انسنا کر دیتے ہیں، اپنی آنکھیں بند کر دیتے، سمجھ کے بھی نہیں سمجھتے. تو ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ ہدایت سے محروم کر دیتا ہے. جب وہ دیکھتا ہے کہ ان کے اندر انٹرسٹ ہی نہیں ہوتا ہے نا بہنوں، ہمارا بچے کے ساتھ ہی دیکھ لو. ہمارا بچہ اگر ایسا حرکتیں کرتا ہے، ہم لوگ بھی کیا وہ کرتے ہیں بہنوں؟ ہم لوگ چھوڑ دیتے اس کے حال میں، نہیں سنتا، نہیں سمجھتا، نہیں کرتا. ہم لوگ بھی دیکھتے 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 پھر کیا بولتے؟ جا، اتنا بول رہی ہوں، کھڈا ہے، مت جا مت جا. نہیں سنتا ہے نا، جا، ایک بار کھڈے میں گرے گا نا تو یہ عقل آئے گی. تو اسی طرح بہنوں اللہ بھی بہت بار ہدایت دیتا ہے، اور جب اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے کہ اس کے اندر انٹرسٹ ہی نہیں ہے، یہ دیکھ کے بھی انجان ہو رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں پر کیا کر دیتے ہیں؟ مہر لگا دیتے ہیں. کیا کرتے ہیں؟ ان کے دلوں کو سیلڈ کر دیتے ہیں. اور پھر ایسے لوگوں کو آپ کتنا بھی ڈراؤ یا نہ ڈراؤ، وہ ایمان نہیں لائیں گے. حق کی آواز جو ہوتی نا بہنوں، اس میں کشش ہوتی ہے. حق حق پر رہتا ہے اور باطل باطل ہو جاتا ہے. جو حق کی آواز کو بھی انسنا کر دے، ہاں، اس کو کوئی کچھ نہیں کر سکتا. اگر قرآن کو بھی سن کے، اذان کو بھی سن کے کوئی انسنا کر دے، اس کو کچھ نہیں کر سکتے. سمجھ میں آ رہا ہے بہنوں؟ اور تیسرے لوگ کون ہے؟ وہ ہے منافقون. وہ ہے کون؟ نفاق سے بھرے ہوئے. یہ ایسے لوگ ہیں بہنوں جو فائدے کے حریص ہوتے ہیں. ہرس ان کے اندر کیا ہوتی ہے؟ فائدہ فائدہ. یہ بد نصیب لوگ ہوتے ہیں بہن. ان کو اللہ نے سارے ہدایت کے راستے دکھائے، ان کو سب پتا رہتا ہے بہنوں، کیا صحیح کیا غلط، دے نو ایوری تھنگ. بٹ یہ لوگ کیا کرتے پتا ہے؟ اپنی من چاہی زندگی جیتے ہیں. ان کو سب پتا ہے بہنوں، کیا صحیح کیا غلط، کیا حلال کیا حرام، کیا گناہ کیا کیا ثواب، سب پتا ہے. پر یہ لوگ من چاہی زندگی جیتے ہیں. یہ اپنے فائدے دیکھتے ہیں بہنوں. ان کو فجر نہیں پڑھنا ہے تو یہ سو کے اٹھتے ہیں. ان کو لگتا ہے کہ چلو چلتا ہے یار، اٹھ کے پڑھ لیں گے تو ہے نا. ان کو کوئی فرق ہی نہیں پڑتا کہ میرے اللہ کا حکم ہے. یعنی بیسیکلی ان کے اندر اللہ کی وہ محبت اور عظمت ہی نہیں ہے. ایک انسان، ایک بیوی ہوتی ہے بہنوں، جب وہ اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، اس کے دلوں میں اس کی عظمت ہوتی ہے، وہ پاگل ہو جاتی ہے اپنے شوہر کے حق ادا کرنے کو، ہے نا. کتنا برابر اس کے شوہر کو کیا پسند ہے ناپسند ہے سب برابر کرے گی، ہے نا. اور وہی ایک عورت ہے جو زبانی کتنا بھی بول لے،
میں میرے شوہر کو پسند کرتی ہوں, میرے شوہر کو چاہتی ہوں, مگر اس کے شوہر کو نہ کھانا برابر دیکھتی ہے, نہ ڈھنگ سے رہتی ہے, شوہر کی کوئی بات ہی نہیں سنتی, ہاں, ہر چیز اپوزٹ کرتی ہے, تو شوہر بھی کیا بولے گا کہ تیری محبت گئی تیل لینے, ہے نا, تیری کوئی محبت ہی نہیں ہے, کیونکہ جو میں بولتا ہوں تو کرتی نہیں ہے, تو اپنی ہی منمانی کرتی ہے. روز کے جھگڑے فساد نہیں ہوتے میاں بیوی کے بیچ میں, کیونکہ بیوی سنتی ہی نہیں شوہر کیا بولتا ہے نا. اگر شوہر واقعی میں صحیح ہے, اچھی باتیں بولتا ہے, اور بیوی سنتی ہی نہیں ہے, تو کیا ہوتا ہے بہنوں, وہ شوہر کے دل میں کیا اس کی محبت آئے گی؟ ہاں, وہ شوہر تو پھر ایک وقت آتا ہے وہ تھوک دیتا ہے کہ بھائی جا, دیکھو جو کرنا ہے کر, تو سنتی نہیں. پریشان ہو جاتے ہیں ایسے شوہر, کریکٹ ہے نا. تو اسی طرح بہنوں, اگر میں واقعی اللہ سے محبت کرتی ہوں, واقعی میرے دل میں اللہ کی محبت اور عظمت ہے, تو میں پورا وہ کام کروں گی جو میرا اللہ مجھے حکم دیتا ہے, اور میں ان باتوں سے بچوں گی جو میرا اللہ مجھے منع کرتا ہے. کریکٹ ہے نا بہنوں. تو اسی طرح بہنوں, یہ جو منافق لوگ ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, اپنی من چاہی زندگی جیتے ہیں. یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں بہنوں, کچھ آیتوں پہ چلتے ہیں, کچھ آیتوں پر نہیں چلتے. جو ان کو آسان لگتا ہے, جو ان کو کنوینئنٹ لگتا ہے, جو ان کو اچھا لگتا ہے, وہ آیتوں کو لے کے چلتے. ہاں, جیسے نماز پڑھ لیتے, روزہ رکھ لیتے, سب کر لیتے, حج عمرہ بھی کر لیتے, مگر جو باتیں ان کو پسند نہیں آتی, ان کے نیچر کے خلاف ہے. ہاں, جیسے کہ اللہ تعالیٰ میوزک منع کرتا ہے حدیثوں سے, ہے نا. اللہ تعالیٰ گانے کو منع کرتا ہے, میوزک کو حرام کرتا ہے, اللہ تعالیٰ پکچروں کو حرام کرتا ہے, بے حیائی کو حرام کرتا ہے, حجاب کرنے بولتا ہے. پر یہ سب میرے نیچر میں نہیں ہے, میرے لائف سٹائل میں نہیں ہے. تو میں کیا کرتی ہوں, کچھ آیتوں پہ چلتی ہوں, کچھ اللہ کی باتوں پر چلتی ہوں, اور کچھ باتوں پر نہیں چلتی, ہے نا. تو ایسے لوگ جو ہے وہ پورے کیا ہے, ایمان والے نہیں ہیں. تو ایسے لوگ کیسے, ڈوگلے لوگ ہیں. اللہ تعالیٰ تو قرآن میں کیا کہتا ہے, پورے اسلام میں آ جاؤ, انٹر دا اسلام کمپلیٹلی. سمجھ میں آ رہا ہے, پورے آنا ہے. اگر کوئی مشین خراب ہو جاتی ہے, واشنگ مشین خراب ہو گئی, اور میرے کو جو میکینک ہے اس نے بولا کہ بھائی اس کے پارٹس کو بدلو, کچھ پارٹس کو بدلو. اب میں اس میں کیا کرتی ہوں, واشنگ مشین کا پارٹ بھی ڈالتی ہوں, اور کچھ پارٹ کار کے ڈال دیتی ہوں بہنوں. تو کیا وہ مشین چلے گی بہنوں؟ ہاں, اس کو پورا واشنگ مشین کا تب ڈالوں گی تو چلے گی نا. ہاں, جو ریپیئر کرنا ہے. اب میں نے کیا کری, واشنگ مشین کا پارٹ نہیں ڈالی, پر میں نے کار کے پارٹس ڈال دی, تو کیا وہ واشنگ مشین چلے گی؟ نہیں چلے گی. اسی طرح اگر میں ایمان والی ہوں, اگر میں مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتی ہوں, تو مجھے پورا اسلام میں داخل ہونا ہے. میں یہاں پہ پک اینڈ چوز مسلمان نہیں ہو سکتی. ایسے لوگ کون ہیں, دوگلے لوگ ہیں. اور ایسے لوگوں کے لیے بہنوں بہت جو ہے وہ عذاب ہے, علیم, ہے نا, عذاب علیم آتا ہے, یعنی کہ دردناک عذاب ہے. وی نیڈ ٹو انٹر اسلام کمپلیٹلی. اور یہ شروع میں نہیں ہوتا, میرے ساتھ بھی نہیں ہوا بہنوں. میں جب بہت دور تھی قرآن سے, تو پہلے میں نے نماز شروع کری, آہستے ذکر, پھر قرآن, پھر آہستہ پردہ. سمجھ میں آ رہا ہے, ایک چیز جو ہے, جیسے قرآن کو اسٹڈی کرتے گئی, جیسے یہ نور آتا گیا, ویسے جو اندھیرے تھے, جو گمراہی تھے, جو برائی تھے, وہ ہٹتے چلے گئے الحمدللہ, اور نور آتا چلا گیا. اوکے, تو آپ سب بہنیں نا امید یا مایوس مت ہونا کہ ارے آپا نے یہ کیا بات بول دیے, ہے نا, دوگلے لوگ ہیں, ایسے لوگ ہیں, ویسے لوگ ہیں. ٹینشن نہ لے, الحمدللہ آہستہ جو ہے نا, ہم سب کیا ہو جائیں گے, ایمان والے ہو جائیں گے. ہم لوگ سب کے اندر جو ہے ایک آیت جب آئے گی, تو برائی جو ہے وہ اپنے آپ دور ہو جائے گی. اوکے, الحمدللہ. میرے پاس وقت کی کمی بہت ہے. پھر آ جاتا ہے بہنوں آیت نمبر 21 میں, جہاں پر ابھی دیکھو میں نے 3 جو ہے وہ انسانیت کے ہدایت کے اعتبار سے انسانیت کے 3 گروہ بتا دی, ہے نا. ایک انکار کرنے والا مسلمان بھی ہے بہنوں, مگر وہ اللہ کو مانتا ہے, اللہ کی نہیں مانتا ہے. کتنے مسلمز ہے دنیا میں جو صرف نیم سے ایک مسلمان ہے بہنوں, صرف بولتے بھی ہم مسلم, مگر ان کے اندر ایک بھی اللہ کا حکم نہیں ہوتا. ان لوگ کو کوئی بولے گا ہی نہیں وہ مسلمان ہے بہن. ایسے بھی لوگ ہیں جن کے اندر نماز بھی نہیں ہے, کچھ نہیں ہے بہنوں, تو ایسے بھی انکاری ہے.
ان کے لیے بھی بہت بڑا عذاب ہے بہنوں، جو اللہ کو مانتے ہیں پر اللہ کی نہیں مانتے. ہم کو دونوں کرنا ہے، کیونکہ جنت جانے کے لیے اللہ نے 2 شرطیں رکھے. کیا 2 شرط رکھے ہیں؟ ایمان بھی لاؤ اور اچھے اعمال بھی کرو، ہے نا. تو دونوں کام کرنا ہے ہم کو انشاءاللہ انشاءاللہ. تو ہم کو تینوں کیٹیگریز میں ایک کیٹیگری میں آنا ہے بہن. اللہ تعالیٰ ہم کو جو ہے وہ انکار کرنے والوں میں سے یعنی کافروں میں سے اور دوگلے لوگ سے بچائے، اور ہم سب کو کیا کرے بہنوں؟ متقیوں میں سے بنا دے. آمین آمین آمین. متقی ہی جنت جائے گا بہنوں. کل سب رشتہ داری سب دوستی ختم، صرف متقی متقی کے دوست ہوں گے بہنوں. صرف متقی جو ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے بہنوں، یہی جو ہے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ عالم ہے. جن کے پاس علماء جو ہے وہ کون ہے؟ جو اللہ سے ڈرتے ہیں بہن. صرف علماء ہے علم جاننے والے جو اللہ سے ڈرتے. تو جتنا علم آئے گا نا بہنوں، اتنا تقوی آئے گا، اتنا ڈر خوف آئے گا. اس کے لیے ہم کو کیا کرنا ہے؟ علم سے جڑنا ہے. سمجھ میں آ رہا ہے؟ اس کے لیے ہم کو نالج سے جڑتے رہنا ہے. نالج جتنا آئے گا، جتنا علم آئے گا، اتنا اندھیرے دور ہوں گے. 4:20 ہو گیا، میرا 1 آور ختم ہو گیا. سوری فار دیٹ بہنوں. پھر آتا ہے بہنوں کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے تمام انسانیت کو دعوت دی ہے کہ اللہ کی بندگی کرو. اوکے، تمام انسانوں کو کیا دعوت دی ہے بہنوں؟ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ پہلی چیز اللہ نے جو دعوت دی ہے وہ نہ نماز کی ہے نہ زکوٰۃ کی ہے، پر اللہ نے کیا دعوت دی ہے بہنوں؟ کہ میری بندگی کرو. اللہ نے کہا کہ بندگی کس کی کرو؟ اللہ کی کرو. بندے بن جاؤ، عاجزی اختیار کرو، اللہ سے محبت کرے، اللہ کا حق ادا کرے، رب کو رب مانے، ہے نا. جو ہمارا خالق ہے، مالک ہے، سب کچھ ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا ہے. الحمدللہ. اور اس کے بعد بہنوں اللہ تبارک تعالیٰ عظمت قرآن کے بارے میں آیتیں اتارتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آج بھی یہ اوپن چیلنج رکھا ہے بہنوں کہ کوئی بھی ایک آیت بھی ایسی نہیں لا سکتا. کوئی بھی ایک آیت بھی، ایک سورہ بھی قرآن آج بھی چیلنج ہے بہنوں. لوگ ناسا میں جا رہے، لوگ چاند تک جا رہے، لوگ مارس کی تیاری کر رہے. ہاں، پر آج اتنا سائنس ترقی کرنے کے باوجود بھی ایک آیت قرآن کی نہیں بنا سکتے، ہے نا. الحمدللہ. اور پھر اللہ تعالیٰ جو ہے وہ جنت دوزخ کی باتیں کرتا ہے بہنوں. اس کا بھی تذکرہ آتا ہے الحمدللہ. اور اللہ تبارک تعالیٰ جو ہے وہ ہدایت کی بات بار بار اس سورے میں کر رہا ہے بہنوں، بار بار اس جز میں کر رہا ہے کہ بہنوں یہ قرآن مین، یہ قرآن ہی کیا ہے؟ ہدایت کی کتاب ہے. مگر قرآن سے کتنے لوگ جو ہے وہ ہدایت بھی پاتے ہیں، اور اگر وہ قرآن کو یعنی قرآن کی عظمت جیسے کہ اس کا حق ہے وہ ادا نہیں کرتے، تو کتنے لوگ ہیں وہ کیا ہو جاتے؟ گمراہ بھی ہو جاتے بہنوں. کتنے لوگ جو ہے وہ کیا کرتے ہیں؟ اس کو ایمان لاتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں، پھر کیا کرتے ہیں بہنوں؟ وظیفوں میں لگ جاتے ہیں. وہ صرف اپنے فائدے کو دیکھتے ہیں بہنوں. مجھے یہ چاہیے، مجھے وہ چاہیے، میں کیا پڑھوں، میں کیا کروں، اسی میں لگے رہتے، اسی کے فائدوں کے پیچھے لگے رہتے. مگر وہ یہ نہیں دیکھتے کہ اللہ اس میں آیتوں میں کیا کہا جا رہا ہے، میں اس کو پریکٹیکلی لائف میں کیسے لاؤں. وہ لوگ اس سے کیا ہو گئے؟ محروم ہو گئے. سمجھ میں آگے بہنوں؟ جیسے ہم دوا کھاتے ہیں، دوائی کھانے سے صحت ملتی ہے، مگر کبھی کبھی دوائی کا ریاکشن بھی ہو جاتا ہے بہنوں. جیسے کہ اگر کسی کو الرجی ہوتی ہے کسی چیز سے، اور ڈاکٹر بھی کبھی بھی دوائی دینے سے پہلے پوچھے گا کہ بھائی تم کو کوئی الرجی تو نہیں ہے نا. ہاں، وہ پوچھتا ہے، کریکٹ، اور اس حساب سے دوائی دیتا ہے. تو سمجھ جاؤ اگر کسی کو کسی چیز سے الرجی ہے تو وہ دوائی بھی کیا کرے گی؟ اپوزٹ ریاکشن کرے گی. اور دوائی کے ساتھ اگر میں جو ہے پرہیز نہیں کرتی، ہاں، سردی کی دوائی بھی کھا رہی ہوں، آئس کریم بھی کھا رہی ہوں، تو دوائی اثر نہیں کرے گی. کریکٹ نا. تو اسی طرح بہنوں قرآن ایک ہدایت کی کتاب ہے. اس کو اسی نیت کے ساتھ بیٹھے سنے سمجھے، ہے نا. ہماری نیت جو ہے وہ ہم صحیح کرے بہنوں. ورنہ کیا ہوگا؟ اگر میں یہاں پر وہ نیت صحیح لے کے نہیں آتی ہوں تو یہ جو ہدایت کی کتاب ہے اس سے بہت سارے لوگ کیا ہو گئے؟ گمراہ بھی ہو گئے. تو ہمیشہ ہم کیا مانگے؟ اللہ سے ہدایت مانگے، ہدایت کی تڑپ، ہدایت کی فکر، ہے نا. اسی کے ساتھ ہم آ کے بیٹھے. اس کے بعد بہنوں آدم علیہ السلام
کا پورا واقعہ آتا ہے، کیسے ابلیس نے جو ہے وہ سجدہ نہیں کیا، یہ پورا انشاءاللہ ڈیٹیل میں آپ کو اس میں بتایا جائے گا۔ ایک چیز اس میں کیا سمجھ میں آئی کہ غلطی سب سے ہوتی ہے بہنوں، ہے نا؟ آدم علیہ السلام سے بھی خطا ہو گئی اور ابلیس نے بھی جو ہے اللہ کی نافرمانی کی، پر فرق کیا تھا بہنوں کہ آدم علیہ السلام نے فٹ سے اپنی غلطی کو مان لیے، اعتراف کر لیے اور اللہ کے سامنے جھک گئے اور توبہ اللہ کیے۔ اور ابلیس نے کیا کیا بہنوں، وہ اپنی غلطی کو غلطی مانا ہی نہیں، اس کو بتا رہے کہ تو غلط ہے، تو نے اللہ کا حکم نہیں کیا، پر اس نے کیا کیا بہنوں، وہاں پہ بحث کیا کہ نہیں میں اچھا ہوں، میں آگ کا ہوں، یہ مٹی کا ہے، میں بہتر ہوں، یہ نہیں ہے، وہاں پہ بحث کرنے لگا، اپنی غلطی کو نہیں مانا، اور پھر اس کا کیا ہوا بہنوں، ہم سب جانتے ہیں نا، اس پر اللہ کی لعنت ہے، وہ جو ہے اللہ کی رحمت سے دور ہے، اور اس کا ٹھکانہ کیا ہے بہنوں، آگ ہے، اور جو بھی اس کے ساتھ جائے چلیں گے، اس کے نقشے قدم پر چلیں گے، ان کا ٹھکانہ بھی کیا ہے، آگ ہے بہنوں۔ تو ہم کو یہاں پہ سبق کیا مل رہا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہو گئی، اگر کوئی غلطی ہو گئی بہنوں، تو غلطی کو مانے، گناہ کو گناہ مانے، توبہ اللہ کرے، عاجزی اختیار کرے، اور اللہ کی طرف ہم پلٹ جائے۔ اوکے، الحمدللہ۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں بہنوں کہ یہ پورے پارے میں بنی اسرائیل کی کہانی، بنی اسرائیل بہت آئے گا بہنوں، یعنی جو جوڈازم ہے بہنوں، اس کے بارے میں آتا ہے کہ سب سے اولڈسٹ مذہب میں آتا ہے، یہودیت بھی بولتے ہیں جس کو، اور اس کے بارے میں آتا ہے کہ بہنوں اللہ تبارک تعالیٰ نے ان کو مسلمان بنایا، ان کا نام بھی مسلمان ہی دیا تھا بہنوں، مگر یہ لوگوں نے اپنا نام کیا دیے، یہودی، انہوں نے اپنا نام خود ہی رکھ دیے یہودی۔ اللہ تعالیٰ نے کبھی ان کو جو ہے وہ یہ نام نہیں دیا تھا۔ آج بھی بہنوں اللہ نے ہم کو جو نام دیا ہے وہ مسلمان ہے، مگر ہم کیا بولتے ہیں، الگ الگ فرقوں کے نام، گروہوں کے نام، جماعتوں کے نام ہم نے لگا دیے، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ ہوں۔ نہیں بہنوں، ہم سب کیا ہے، مسلمان ہے۔ قبر میں بھی جو 3 سوال پوچھے جائیں گے، اللہ نہیں پوچھے گا تم کون سے مسلک کے ہو، تم کون سے امام کو فالو کر رہے تھے، تم کون سے گروہ کے تھے، جماعت کے تھے، نہیں، ہم سب کون ہے بہنوں، مسلمان ہیں۔ اوکے، الحمدللہ۔ مگر یہ جو یہودی لوگ تھے، ان کے علماؤں نے کیا کیا بہنوں، ان کے علماؤں کو ہی جو تورات کا علم تھا بہنوں، اور وہ لوگوں نے دین کو چھپایا، دین کو پلٹا دیا، دین کو بیچ دیا، سودا کر دیا، یعنی کہ بہت ہی برا سودا کیا بہنوں، انہیں دین کے بدلے انہوں نے آخرت کا سودا کر دیے۔ اور اس سے ہم کو کیا سبق مل رہا ہے بہنوں، کہ اللہ تبارک تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو بہت بہت پسند کیا، ان کو چن لیا، ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری نعمتیں دی، نبیوں کو بھیجا، انبیاؤں کو بھیجا، مگر انہوں نے کیا کیا، ہمیشہ اللہ کی نعمتوں کا انکار کیا، ناشکری کرے اور نافرمانی کیے۔ اسی طرح بہنوں ہم کو یہ کام نہیں کرنا ہے جو پہلے کی امتوں نے کیا ہے، ہم کو یہ کام نہیں کرنا ہے۔ انہوں نے ناشکری کی، ہم کیا کریں گے، ناشکری نہیں کریں گے، ہم ہمیشہ اللہ کی تعریفیں کریں گے۔ اوکے، الحمدللہ۔ اسی طرح ایک گائے کا بھی واقعہ آتا ہے بہنوں، جہاں پر اللہ تبارک تعالیٰ پورا پورا گائے کا واقعہ آئے گا، اور یہاں پر جو ہے موسیٰ علیہ السلام تو ان سے پناہ مانگتے ہیں کہ یا اللہ میں ایسے جاہلوں سے پناہ مانگتا ہوں کہ کبھی میں بھی ایسا نہیں ہو جاؤں۔ یعنی انہوں نے اپنے نبی کو بہت ستائے بہنوں، اتنے سوال کیے، اتنے سوال کیے، ایک گائے کو ذبح کرنا تھا، مگر ان کے دلوں میں بہنوں اللہ کی محبت اور عظمت، ان کی نبی کی محبت اور عظمت نہیں تھی بہنوں، غیر اللہ کی تھی۔ اور اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، انہوں نے اتنے سوال کیے، اتنے سوال کیے، اپنے آپ کو مشکل میں ڈال دیے، انہوں نے مذاق اڑایا بہنوں، سیریس ہی نہیں تھے اللہ کے احکام پر، اتنے بے فضول سوال، کثرت سوال اتنے کیے تاکہ حکم جو ہے وہ ٹل جائے، پر اللہ تبارک تعالیٰ نے جو ہے ان کو جو ہے ان کے سوال کرنے پر اور سختیاں پیدا ہوتی گئی۔ اس سے ہم کو کیا پتا چلتا ہے بہنوں، کہ کہیں نہ کہیں ان کے دل جو تھے وہ سخت ہو چکے تھے، ان کے دلوں میں اللہ کی اور نبی کی عظمت ہی نہیں تھی بہن،
تو यहाँ पर अल्लाह ताला इनके बारे में कहता है कि इनके दिल सख्त हो गए थे, पत्थरों के जैसे हो गए थे। बहनों, हमको भी क्या करना है, इससे सबक सीखना है कि क्या मेरा दिल पत्थर जैसा तो नहीं हो गया है, क्योंकि अभी रमजान का महीना आने वाला है। मेरा दिल कैसा हो, नरम हो। अगर दिल नरम होएगा तो कुरान असर करेगा, कुरान की बातें समझ में आएगी, है ना। जब सहाबाओं के सामने कुरान पढ़ा जाता था तो उनकी आंखें रोती थी, वो ज़ारो कदार रोते थे, झुक जाते थे। उनको, उनके दिल इतने नरम थे। क्या मेरा दिल आज नरम है? आज तो मैं टीवी सीरियल देख के, पिक्चर देख के, कोई इमोशनल शॉट आता है तो मेरे को रोना आ जाता है, किसी की दुख भरी कहानी सुनकर रोना आ जाता है, आयतें सुन के रोना ही नहीं आता है, अल्लाह की मोहब्बत में रोना नहीं आता है। मेरा दिल क्या हो चुका है, सख्त हो चुका है। बहनों, तो आज हम कहाँ पड़ गए हैं, दुनिया में इंडल्ज हो गए हैं, गुनाहों में पड़ गए हैं। अगर मैं चाहती हूँ कि मेरा दिल नरम हो तो मुझे क्या करना चाहिए, कम खाना चाहिए, कम सोना चाहिए इंशाल्लाह। और लोगों से ज्यादा घुल मिल कर रहने से भी दिल जो है वो सख्त हो जाता है। यानी मैं अल्लाह के लिए टाइम ही नहीं निकालती, कुरान के लिए टाइम ही नहीं निकल रहा है, लोगों के साथ ही रहती हूँ, बैठी ही रहती हूँ, बातें करती रहती हूँ, फिजूल बातें, बेकार की बातें। तो क्या होएगा बहनों, मेरा ईमान कमजोर होता जाएगा और फिर क्या होएगा, दिल सख्त हो जाएगा। उसी तरह ख्वाहिश परस्ती, यानी जो दिल बोल रहा है वो करते रहते, करते रहते, करते रहते, और अल्लाह से बढ़कर किसी और से मोहब्बत करते हैं, तो दिल क्या हो जाता है बहनों, सख्त हो जाता है। उसके बाद सुलेमान अलैहिस्सलाम का वाकया आएगा, जादू के बारे में बताया जाएगा, बहुत सारे ऐसी चीजें हैं बहनों जो इंशाल्लाह इंशाल्लाह डिटेल में पता चलेगा। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और इस्माइल अलैहिस्सलाम, जिन्होंने किसकी तामीर की, जिन्होंने बुलंद किया किसको, काबतुल्लाह को, अल्लाह के घर को। और उनके अंदर इतनी आजिजी थी बहनों कि वो बुलंद कर रहे थे और फिर भी वो अल्लाह से दुआ कर रहे थे कि या अल्लाह कबूल कर, हमसे कबूल कर, है ना। तो उसी तरह बहनों हम भी अल्लाह से दुआ करेंगे कि या अल्लाह, जैसे कि हक था अदा करने का वो नहीं हुआ या अल्लाह, है ना। पहला जुज, बहुत सारी बातें, बहुत सारी नसीहतें बहनों, है ना। जैसे कि हक है वैसे हक अदा नहीं हुआ, पर या अल्लाह तू रहीमों का रहीम है, करीमों का करीम है। या अल्लाह तू हमारी नियतों को जानता है, हम खालिस तेरे लिए यहाँ पर आके बैठे। या अल्लाह प्लीज हमारे इस बैठने को, बोलने को, सुनने को कबूल कर ले। या अल्लाह हमारे अंदर हर वो बात को ला ले जो तू चाहता है। या अल्लाह तेरी रजा वाली जिंदगी, तेरी रजा वाली मौत और तेरे रजा वाले अमाल करने वाला बना। तेरी नाराजगी वाली जिंदगी, नाराजगी वाली मौत और नाराजगी वाले अमाल से हिफाजत फरमा। आमीन, आमीन, आमीन। या अल्लाह हमारे बोलने को, सुनने को, या अल्लाह सबको तू कबूल कर। या अल्लाह जितनी भी गलती कोताही है, या अल्लाह मैं तुझसे माफी मांगती हूँ और मेरी बहनों से भी माजरत चाहती हूँ। या अल्लाह पहले जुज में जितने भी अल्लाह नसीहतें हैं उन सब नसीहतों पे चलने वाला बना दे, और जितने भी वईदे है, वार्निंग्स है, या अल्लाह तू हम सब की हिफाजत फरमा। या अल्लाह हमारे दिलों को नरम फरमा। या अल्लाह हमारे हिदायत के फैसले फरमा। या अल्लाह हमारे और हमारे नस्लों को तू दीन का दाई बना, कुरान का दाई बना, कुरान के पूरे 5 हक अदा करने वाला बना। या अल्लाह, या अल्लाह कुरान के साथ हमको हमेशा दुनिया में रखना, आखिरी सांस तक हम इस कुरान के साथ रहे। हम जब इस दुनिया से जाए तो भी हम कुरान के साथ जाए, कब्र में भी कुरान मेरा साथी, हम सबका साथी रहे। हमको जब कब्र से उठेंगे तब भी हमारा साथी कुरान रहे। या अल्लाह हम जहाँ कहीं भी रहे, हमारे साथ हमारा कुरान हमारा साथी रहे। प्लीज अल्लाह कुरान से कभी जुदा मत करना, प्लीज अल्लाह कभी तू नाराज मत होना। या अल्लाह ये कुरान है जो कल सिफारिश करेगा, जन्नत को लेके जाएगा, और तू उसकी दुआ रद्द नहीं करेगा या अल्लाह। या अल्लाह जब कुरान सिफारिश कर रहा हो तो वो हमारे हक में हो या अल्लाह। तू ऐसे गैब के सूरत शक्लें बना। या अल्लाह ये कुरान शिकायत करेगा या अल्लाह, जो भी इसके हक को अदा नहीं करेगा वो उसके लिए लड़ेगा या अल्लाह, उसको जहन्नम में लेके जाएगा या अल्लाह। तू हम सब की हिफाजत कर या अल्लाह, तू हम सब की हिफाजत कर या अल्लाह। या अल्लाह कल कुरान
قرآن جو ہے وہ نور بن کر آئے گا، شکل بن کر آئے گا یا اللہ، وہ تو قبر میں بھی آئے گا، سورہ ملک بن کر آئے گا یا اللہ، ہر جگہ یا اللہ ہم اس قرآن کا حق ادا کر رہے ہو، تو ایسے غیب کے صورت شکلیں بنا، کبھی کبھی ہم کو قرآن سے جدا مت کرنا یا اللہ، پلیز اللہ کبھی جدا مت کرنا، ہم اس سے اتنی محبت کرتے، اتنی محبت کرتے، ہمارے نس نس میں یہ قرآن ہے یا اللہ، کبھی مت نکالنا یا اللہ، یہ ہمارا آکسیجن ہے، یہ ہمارا سب کچھ ہے یا اللہ، کبھی اس سے دور مت کرنا یا اللہ، یا اللہ تو ہر دعا کو قبول کرتا ہے یا اللہ، قرآن کو ہمارا ساتھی بنا دے یا اللہ، آمین آمین، اس کے حق کو ادا کرنے والا، ہر جگہ پھیلانے والا، اور جتنے بھی لوگ اس قرآن کے ساتھ محنت کر رہے ہیں، اس قرآن کے ساتھ اس کا حق ادا کر رہے ہیں، اس کو پھیلا رہے، ان سب کی بھی اللہ تو مدد کر، ان سب کی بھی تو اللہ دعائیں قبول کر یا اللہ، قرآن کو پورے عالمین میں پھیلا دے اور ہم کو اس کا ذریعہ بنا دے، آمین آمین آمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و اتوب الیک، سبحان ربک رب العزت عما یصفون، والسلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔